بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک عجیب سے اضطراب نے اسے گھیر رکھا تھا۔ وہ اس اضطراب کی وجہ جانتا تھا، ظاہر تھا زندگی کا یہ نیا موڑ منچا ہونے کے باوجود اچانک تھا۔ کب سے اس کے دل میں چھپ کے بیٹھی یہ خواہش اپنی اس پذیرائی پر بوکھلا سی گئی تھی۔ اس نے بھی تو عرصہ خود ہی اس خواہش سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ ایسے میں اگر بن مانگے وہ مل جائے جس کی تمنا کی جسارت کرنا بھی دشوار لگتا ہو تو شاید انسان اسی طرح گھبرا جاتا۔ وہ بھی گھبرا اٹھا تھا۔ جب امی نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا وہ چونک اٹھا۔ کیا؟ کیسا بھی ہو سکتا ہے؟ اب بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ایسا سوچا تک نہیں، وہ بڑبڑاتا رہا۔ امی کے فیصلے پر جی بھر کے حیران ہوا مگر خوش ہونے کی ہمت نہ کی۔ بھلا اس کے ان کے ایک طرفہ فیصلے پر جشن مناتے پھر نہ کہاں کی دانش مندی تھی، بلکہ اسے تو ان پر ہلکا ہلکا سا غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی میرے سامنے ایسے خیال ظاہر کرنے کی؟ کتنا وقت اور کتنی محنت لگی مجھے اس خیال کو دل سے نکالنے میں، اور اب پھر سے وہ مجھے الجھا رہی ہیں۔ اب جب کہ میں الجھنے کے لیے آزاد بھی ہوں۔ لیکن تب وہ خود کو خوش ہونے سے روک نہیں سکا جب امی نے اسے رشتہ طے ہونے کی خوشخبری سنائی، اور یہ بھی کہ احمری بھی شادی کے لیے دل و جان سے راضی ہے۔ شادی بے شک سادگی سے بھی صبح نکاح اور اس کے ساتھ ہی رخصتی اور اسی رات ولیمے کی دعوت، لیکن وہ احمری کی پذیرائی کو سادگی کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنا پورا کمرہ اس نے موتی اور سفید گلابوں سے بھر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا احمری کو سفید رنگ اور موتیوں کی مہک کتنی پسند ہے۔ 4 روز پہلے اس نے اس بیڈ روم کے آسمانی رنگ کو تبدیل کروا کے وائٹ پینٹ کروایا تھا۔ مختصی سے ٹیرس میں بیڈ روم کا دوسرا دروازہ اور بڑی سی کھڑکی جہاں کھلتی تھی وہاں اس نے موتیوں کے پودے کے بڑے بڑے گملے رکھوا دیے تھے۔ وہ جب چاہے ہاتھ بڑھا کے موتیوں کی کلیاں چن سکتی تھی۔ امی نے اس اہتمام کو خاصا محسوس کیا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے سوچا تو وہ احمری پر بھی سب کچھ کھل کے ہی ظاہر کرے گا۔ وہ ساری بےتابیاں، وہ لمبی ڈنگ مارتی راتیں اور وہ سارے کٹھن دشوار دن جو اس کو سامنے پا کر بھی بے بس اور مجبور بن کے گزرے۔ دل کو مسلنے کچلنے کے وہ سارے تکلیف دہ مراحل اسے بتانے کا ارادہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اضطراب کی جگہ ہے جان نے اس پر غلبہ پا لیا۔ وائٹ اور گولڈن پینٹ سے آراستہ اس وسیع آرام دہ بیڈ روم کے وسط میں موتیا رنگ کے گھیردار کرتے اور چوڑی دار پجامے میں بڑے سے گولڈن کام سے بھرے ہوئے دوپٹے کو پھیلائے بیٹھی احمری نے اس کے شوق کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ تم ہو میرے پہلو میں کہ زندگی کے خواب زندگی تعبیر کی صورت میں آیا۔ وہ بے ساختہ کہتے اس کے قریب ہی بیٹھ کے گھٹنوں پر تھرے اس کے کومل ہاتھوں میں واضح لرزش پیدا ہوئی اور جھکے ہوئے سر نے اٹھتے اٹھتے خود کو پھر سے روک لیا۔ وہ مسکرایا۔ یہ کھلتے پھول سا چہرہ جو اپنی مسکراہٹ سے جہاں بھی روشنی کر دے، لہو میں تازگی بھر دے، بدن ایک ڈھیر ریشم کا جو ہاتھوں میں نہیں رکتا۔ وہ کہتا رہا، اس کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ سے شانے تک کا سفر طے کر گیا، اور احمری وہ جیسے کسی اچانک جھٹکے کے زیر اثر تھی۔ اس کی آنکھیں بددستور چھکی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس کے چہرے سے تعجب کی تحریر بخوبی پڑھی جا سکتی تھی۔ انوکھی سی کوئی خوشبو کہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کا آنچل کچھ سرکایا۔ بہت نزدیک سے دیکھیں تو چیزیں پھیل جاتی ہیں، سو میرے 400 دو جھیل سی آنکھوں کا پہر ہے، تمہیں میں کس طرح دیکھوں؟ اس کے لہجے میں شاید وہ سب بےتابیاں تھیں جو گزشتہ سالوں کی بندش نے سینے میں دبا دبا کر طوفان کر دی تھی۔ احمری الجھ تو پہلے گئی تھی، اب چونک بھی گئی۔ اس کی سبھی پیشانی پر ایک ہلکی سی شکن عارف کو سنبھلنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے سرخ مخملی ڈبیا میں سے 2 کلائی کنگن نکالے، بے حد باریک اور نفیس نقش اور جا بجا چمکتے سفید نگینے ان کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ اس نے احمری کا دایاں ہاتھ اس کے پہلو سے یوں اٹھایا جیسے کسی نازک سی کلی سے شبنم کا کوئی قطرہ پور پر چن لیا۔ وہ اس کی نازک سی کلائی میں کنگن پہنا رہا تھا اور اس کے انداز میں کوئی مزاحمت نہیں تھی، لیکن اگلے لمحے جب عارف نے اس سے کہا، جانتی ہو یہ کنگن میں نے آج سے 2 سال پہلے خریدے تھے، تو اچانک وہ اپنا ہاتھ کھینچ کے رہ گئی، لیکن عارف کی نرم گرفت مضبوط ہوگی اور اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگا دے اس نے اور بھی محسور کر لیا۔ لیکن انہیں لیتے ہوئے بھی تمہارا چہرہ میرے تصور میں تھا۔ میں نے چھٹکنے کی بہت کوشش کی مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں نے ہار مان لی اور یہ کنگن ویسے کے ویسے رکھ دیے۔ نہ میں نے دیکھ کے تمہارا تصور کرنے سے خود کو باز رکھ پا رہا تھا اور نہ ہی انہیں تمہاری نظر کرنے کا اختیار رکھتا تھا، اس لیے پڑے رہے۔ 2 سال تک پڑے رہے اور شاید عمر بھر پڑے رہتے اگر تم نہیں آتی۔ تم نہیں جانتی احمری، تم میرے لیے کیا اور تم نے میری زندگی میں آ کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اس نے اپنی بے یقین آنکھیں اٹھائی۔ عارف اور بھی سحرزدہ ہو گیا۔ وہ تو ویسے بھی ان آنکھوں کا ڈسا ہوا تھا اور اتنے قریب سے ان آنکھوں کی کرنیں خود پر پڑتے محسوس کرنے سے بے خود کر گیا۔ اسی حال میں بے خودی میں سے یہ تک نہیں محسوس ہوا کہ یہ کرنیں کتنی حدت لیے میں۔ وہ ان آنکھوں کی خوش رنگ پتلیوں میں ناچتی وحشت سے یکسر انجان اب تک بس ان طلسمی پلکوں کے اٹھنے کے منظر میں گم تھا۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ پلکیں آج سے نہیں بلکہ 3 سال سے مجھ پر سایہ کیے ہوئے۔ میں جہاں بھی گیا، کہیں بھی رہا، کسی کے ساتھ بھی رہا، یہ بادل میرا سایہ بنا رہا۔
احمری کی آنکھوں کی وحشت اب اجنبیت میں بدل گئی. حیا نے سرد مہری اوڑی اور وہ کاٹدار لہجے میں بولی. تو کیا پہلے سے مجھے؟ ہاں ہاں احمری، بہت پہلے سے. جب سے تمہیں دیکھا تب سے میں تمہارا اسیر ہوں. تمہاری پہلی جھلک نے مجھے چونکا دیا تھا. تمہاری آنکھوں کا پہلی بار دیکھنا ہی تو مجھے لوٹ کر. بس بس، اب ایک اور لفظ نہیں. اس کی آواز اتنی بلند اور لہجہ اتنا کٹھور تھا کہ اقرار کے نشے میں ڈولتا عارف بھی چونک گیا. اس کا یہ روپ اس کے لیے انجان اور غیر متوقع تھا. اس کے گہرے سرمئی بادلوں کی رنگت والی آنکھیں شفق رنگ لالی لیے ہوئے تھی، جیسی وسط مئی کی کسی خشک شام میں اچانک پچھم سے لال طوفانی آندھی کا جھکڑ اٹھ گیا ہو. ہر طرف گردی گرد اور لالی ہی لالی ہو. اس کی آنکھوں میں بھی اس وقت سب کچھ مٹیالہ مٹیالہ سا تھا. ہویا کی اس رات ٹوٹے ہوئے تاروں کی گونج میں ہم کتنی دیر چلتے رہے کچھ پتا نہیں. کب تک ہم ان انکہے رفسوں کی کرچیاں فرش ہوا سے چنتے رہے کچھ پتا نہیں. وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا جرم سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں سے احمری کی اپنی نئی نویلی دلہن کی اس درجہ ناراضی سمیٹنا پڑی. بلکہ یہ رویہ تو شاید ناراضگی سے بھی بڑھ کے کچھ تھا. اسے اس کے زہریلے الفاظ یاد ہے. عارف مصطفیٰ، اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ کی بظاہر ستھری اور نکھری شخصیت کے پیچھے اتنا مکروہ کردار چھپا تو میں کبھی آپ سے شادی نہیں کرتی. لے تینوں کیڑا دورہ پاتا انہیں مکروہ کردار چھپایا کیسے نظر آ گیا. اس نے ایک چھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچا اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گیا. جینی مریضہ لایا لگتا. اس نے ایک بار پھر سے وضاحت طلب کرنا چاہی تھی لیکن اسے آئینے کے سامنے کھڑے نوچ نوچ کے زیورات اتارتے دیکھ رک گیا. اور جیسے اس نے عارف کے دیے کنگن اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکے ایک کنگن نیچے گر کے لڑکتا ہوا دور تک چلا گیا. عارف کے اندر غیظ و غضب کا ایک تیز لہر اٹھی. وہ ایک دم کمرے سے باہر نکلا اور لان میں آ گیا. وہ پچھلے 1 گھنٹے سے حبس بھری تاریکی میں کھڑا تھا اور ابھی بھی اس کا اندر جانے کا ارادہ نہیں تھا. ایک ایسے مرد کی انا پر چند گھنٹے پرانی دلہن کا حتیٰ کمیز رویہ کاری ضرب کی مانی تھا جس نے برسوں تک اپنے جذبوں کی ہوا تک کسی کو نہیں لگنے دی. حتیٰ کہ ان خشک رنگ آنکھوں تک اس پر ظاہر نہیں کیا کہ کب اور کس طرح اچانک وہ ان کا اسیر ہوا. ایک منچاہی ہستی کو نہ پانا شاید اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اذیت ناک شخص کی نفرت سہنا ہوتا ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تمنا کی جائے. اور اس نے اس کی تمنا کب نہیں کی تھی؟ تب سے جب پہلی بار اسے دیکھا تھا. اسے تب اب تک آئینے پر جھلملاتی وہ 2 آئینہ سی آنکھیں یاد تھیں. وہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. وہ ایک انٹرویو کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا تھا اس لیے صبح 4 بجے والی کوچ میں بیٹھا. کوچ میں زیادہ مسافر بھی نہیں تھے. اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے. اور جب وہ 2 لڑکیاں کوچ کے چلنے سے پہلے چند ہی منٹ پہلے بس میں سوار ہوئی تو وہ خاصا حیران رہ گیا. دونوں لڑکیوں کے پاس ایک ایک مختصر سفری بیگ تھا جبکہ ہاتھوں میں اٹھائی کتابیں انہیں اسٹوڈنٹ ظاہر کر رہی تھی. اسی طرح سلیقے سے پھیلا کر لیے دوپٹے اور باوقار و خود اعتماد انداز بتا رہے تھے کہ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں. عارف نے چٹتی سی نظر ڈالنے کے بعد کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا. اس وقت ہلکے ہلکے اجالے اور دم توڑتے اندھیرے میں ہر جانب ایک سکون سا ٹھہرا ہوا تھا. خاکروب سڑکوں پر صفائی کا آغاز کر چکے تھے. بک سٹال والے ہاکرز کے انتظار میں فٹ پاتھ پر بنے سٹینڈ جھاڑے تھے اور چند سپاہی دکانوں کے شٹروں کے نیچے سوتے ہوئے بھکاریوں کو جگانے کا فریضہ انجام دے رہے تھے. دور ایک لائن میں لگے چنچی کے رنگ برنگے سکوٹرز رکشے خلاف عادت خاموش کھڑے تھے. وہ دلچسپی سے باہر کے منظر میں گم ہو گیا. کوچ چل پڑی اور اس وقت شاید شدرا کا پل کراس کر کے دریائے راوی سے گزری تھی. شہر کا پردہ چاک کر کے اجالا نامحسوس طریقے سے پھیل چکا تھا. لاؤڈ سپیکر کے کھڑکنے کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے والی تھی. اسے ڈرائیور کی سست رفتاری سے کوفت سے بھی 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا. اب تک لاہور سے نہیں نکل پایا تھا. اس نے ڈرائیور کو مخاطب کرنے کی غرض سے رخ موڑ کے جیسے سامنے نگاہ کی ڈرائیونگ سیٹ کے سامنے لگے اس نے ڈرائیور کو مخاطب کرنے کی غرض سے رخ موڑ کے جیسے سامنے نگاہ کی ڈرائیونگ سیٹ کے سامنے لگے بیک ویو مرر پر جھلملا دے ایک ادھورا سا عکس اسے مبہوت کر گیا. کئی ساتھی یوں ہی بے دھیانی میں سے تکتے گزر کی وجہ سے وقتی طور پر بھول ہی گیا تھا کہ وہ کہاں اور اس نے انجانے میں کیا حرکت سرزد ہوئی ہے. ابھی کچھ ہی دیر قبل جب اس کی غیر ارادی طور پر کوچ میں چڑھتی ان لڑکیوں کی طرف اٹھی تو اس نے فوراً خود کو اس معیوب حرکت پر ٹوکتے ہوئے باہر کی طرف دھیان لگا. اور اب وہ خود ہی تب اس مٹیالے سے اندھیرے میں خوشگوار آنکھیں یوں واضح بھی تو نہیں ہوئی تھی. وہ سوچ کے زیر لب مسکرایا. اچھی آنکھیں اس کی کمزوری تھی اور یہ آنکھیں وہ اس وقت آئینے پر چسپاں تھی. صرف اچھی نہیں بلکہ سب سے منفرد، سب سے نرالی تھی. اگر جتنے فاصلے سے اور کم روشنی کی وجہ سے ان آنکھوں کی اصل رنگت تک نہیں کھل رہی تھی اس کے باوجود ان کی جھلملاہٹ اور گہرائی اپنی انفرادیت کا اعلان پکار پکار پر کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر ان کی آنکھوں کی گہرائی پر غور کیا. ہاں، گہرائی. ان کی ساخت کے لیے یہی ایک لفظ موزوں لگا اسے. یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آنکھیں اس کے چہرے پر نہیں بلکہ پورے وجود پر چھائی ہوں. نہ صرف اس کے وجود پر بلکہ آس پاس کے سارے ماحول اور فضا پر. ماحول سے اس کے ذہن میں ایک دم جھماکا سا ہوا. اس نے ہڑبڑا کے چاروں طرف دیکھا. کہیں اس کی چوری پکڑی تو نہیں گئی. زیادہ تر لوگ اونگ رہے تھے. کوئی باریک بینی سے دل بہلا رہا تھا تو پھر محتاط ہو گیا کہ کہیں اس کا ٹکٹکی باندھ کے سامنے دیکھتے دیکھتے نینم اسے مشکوک نہ بنا دے. ہاں جی سونے. خود ہی پہن لیے شوز. بڑے ہو گئے ہو. اچھا میرا بیٹا خود شوز پہن لی. صحیح. مما کو نہیں کہا.
اچھا چلو ایک پاری دے دو، ایک پاری دے دو پھر. میرا کاکا آ گیا تھا بیچ میں. داجا داجا بند کر دو چھونے. میرا بھتیجا تھا عیسیٰ، وہ آ گیا تھا. میں بڑا ہو گیا ہوں. اچھا جی، کدھر تھے ہم؟ زیادہ تر لوگ اونگ رہے تھے، کچھ باریک بینی سے دل بہلا رہے تھے. کوئی اخبار بینی سے دل بہلا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ محتاط ہو گیا کہ کہیں اس کا ٹکٹکی باندھ کے سامنے دیکھتے رہنے سے مشکوک نہ بنا دے. نہ چاہتے ہوئے اس نے سیٹ کی پشت پر سر دھرا اور پلکیں موند لی. حیرت انگیز طور پر وہ بند پپوٹوں کے پردے کے پیچھے بھی وہی آنکھیں جھلملاتے دیکھ رہا تھا. ایک بری ہوئی کہ منڈا تو پاگل ہو گیا. نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ چونکا جب موبائل کی بیپ نے کچھ کوچ کی خاموش فضا میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کیا. ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کی مدھم سی آواز سنائی. جی امی، گجرا والا گزر گیا؟ نہیں نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی. عارف نے سیٹ پر سیدھے ہو کے بیٹھتے ہوئے دھیان دیا. ان لڑکیوں کی سیٹ اور اس کی سیٹ کے درمیان والی سیٹ نہ جانے کس وقت خالی ہوئی سے پتہ بھی نہیں چلا، اور اب ایک سیٹ آگے بیٹھی وہ دونوں سے صاف سنائی بھی دے رہی تھی اور قدرے دکھائی بھی. موبائل کان سے لگائے اپنی امی کو تسلیاں دیتی وہ دوسری لڑکی تھی، جبکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اب آئینے کو اپنی آنکھوں کے عکس کی گرفت سے آزاد کر چکی تھی. عارف جو خود کو چھڑک کر بمشکل حرکت سے باز رکھ پایا تھا، آنکھیں کھولتے پھر سے اس منظر کی آس میں پھڑکنے لگا. اسے خوامخواہ میں فون والی لڑکی سے چڑ ہونے لگی جو اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچے ہوئے تھی. وہ بھی نہ جانے کیا کہنے کے لیے بار بار اسے اشارے کر رہی تھی. جی امی، گیٹ کیپر کو رات کو ہی کہہ دیا تھا، وہ خود ٹیکسی میں یہاں تک چھوڑنے آیا تھا. ڈرائیور کو ٹائم پر بھیج دیجیے گا، راستے میں میرو کو بھی ڈراپ کرنا ہوگا. میرو؟ وہ دہرا کے رہ گیا. میرو یہ کیسا نام ہے بھلا؟ شاید ماریا، یا شاید مہر النساء، یا پھر مہرین ماہین. نہیں، ضرور مہر النساء ہوگا. کیا اس کا نام رکھنے والوں نے یہ آنکھیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ ان آنکھوں پر تو بندہ پورے کا پورا دیوان لکھ ڈالے. کیا ایک اچھا سا نام بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا جو ان آنکھوں کی خراج تحسین پیش کر پاتا، جیسے کہ نینا؟ اپنی کہہ جاتی ہوں، میری بات تو کرواؤ آنٹی سے. اس کی جھنجھلائی ہوئی سی دھبی دھبی آواز آئی. مجھے ان سے کہنا تھا کہ میرے گھر بھی فون کر کے اطلاع دے دے. جا تو رہی ہو، خود ہی جان جائیں گے. لاپرواہ سے انداز میں جواب ملا، جس نے اس کی جھنجھلاہٹ میں غصہ بھی ملا دیا. اور ساتھ ہی زبردستی ڈانٹ بھی پڑے گی یوں بغیر اطلاع دیے ہاسٹل سے نکلنے پر. تو پھر تم خود بات کر لو، میں نمبر ملا دیتی ہوں. خلاف معمول ڈرائیور نے ٹیپ ریکارڈر کو اب تک چھیڑا نہیں تھا. ٹریفک بھی کم تھا اور کچھ عارف بھی ان کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس لیے بغیر کسی اضافی کوشش کے ان کی گفتگو بآسانی اس تک پہنچ رہی تھی. پاپا، آپ تو ایک دم گھبرا جاتے. سوری، واقعی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی صبح صبح میرا فون آپ کو چونکا دے گا. جی نہیں، ایمرجنسی کیا ہونی تھی؟ بس آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اکیلے سفر ہرگز نہیں کر سکتی، ثنا کے ساتھ ہی آنا ہوتا ہے. اس کا پروگرام اچانک بنا تو پھر میں بھی تو پاپا بعد میں کس کے ساتھ آتی؟ کوئی نہیں پاپا، لاہور بھی آدھی رات کو بھی سناٹا نہیں ہوتا. ہم تو پھر صبح 4 بجے نکلے تھے اور خان چاچا ساتھ ہی تھے. ہاں جی، واٹر نے بھیجا تھا. نہیں نہیں، ثنا گھر تک چھوڑ جائے گی. اوکے پاپا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ وہ دونوں لاہور کی رہنے والی نہیں اور تعلیم کی غرض سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی. کچھ دیر بعد پیٹرول پمپ پر رکنے کی وجہ سے دوسرے چند منحبروں کے ساتھ وہ بھی نیچے اترا اور واپس چڑھتے وقت جان بوجھ کے ان کے پچھلے والی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا. نزدیک سے گزرتے ہوئے اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ میں میڈیکل کی کتاب تھی. یہ موٹی سی خوش کتاب اس وقت عارف کو کسی شادی قسم کے رکیب سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس نے اس کے چاند چہرے سے تارا آنکھوں کو اوٹ میں لے رکھا تھا. وہ بار بار آئینے پر نظر ڈالتا اور کتاب کی بکواس سرور کو دیکھ کر چڑ جاتا. آدھ گھنٹے بعد شاید اس نے تھک کے کتاب نیچے کی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹیک کر آنکھیں موند لی. عارف مایوس ہونا چاہتا تھا، ہوا نہیں. پلکوں نے آنکھوں کو پردے میں لے کر اس کے چہرے کے باقی نقش ابھار دیے، وہ نقش جنہیں اس کی آنکھوں کتاب ناکی کے پنس منظر میں دھکیل دیتی تھی. اس نے تسلیم کیا کہ ان دو آنکھوں کے خزینے کے علاوہ بھی اس نے کئی سوغاتیں سمیٹ رکھی ہیں. وہ اسے دیکھتا رہا، حیران ہوتا رہا. اتنے دلکش نظارے کی مسلسل دید نے بھی اسے سرابی کا کوئی احساس نہیں بخشا تھا. وہ جتنا اسے دیکھتا چاہتا تھا، تشنگی اس کی پیاس بڑھاتی جاتی. وہ مضطرب ہو اٹھا، بس نہ چل رہا تھا کہ اس کے چرنوں میں بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے بس ایک بار آنکھیں کھولنے کی درخواست کرے. اپنے دل کے اس فدیانہ انداز پر اسے غصہ بھی آیا اور قریب تھا کہ وہ خود سے اس بے تابی پر لڑنا شروع کر دیتا کہ یکایک آئینے پر پھر سے وہ دو سرمئی جھیلیں منعکس ہونے لگیں. سورج کی دھولی دھولی اولین کرنیں ان آنکھوں کا سحر انگیز رنگ کوس قزح میں لپیٹ کے آئینے پہ اتار رہی تھی. نیلا، پیلا، گلابی، کاسنی رنگوں کا ایک میلہ تھا اور وہ سرمئی نگینے جیسے اس میلے کی شان تھے. وہ اس میلے میں کھو جانا چاہتا تھا، کھو رہا تھا کہ اچانک میلہ اپنی تمام تر رونقیں سمیٹنے لگا. جہلم کے سٹاپ پر کوچ کے رکتے ہوئے دونوں اٹھ کھڑی ہوئی. عارف نے پھرتی سے اٹھ کر ان کے بیک سیٹ کے اوپر رکھے سٹینڈ سے اتارے. دل میں مہم سی امید تھی کہ شاید دوبارہ رابطے کی کوئی امید پیدا ہو سکے، لیکن ظاہر ہے کہ ناممکن تھا، سو ناممکن ہی رہا. دوسری لڑکی نے تو اپنا بیگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ذرا سا مسکرا کے تھینک یو بھی کہا، لیکن میرو نے اس کا شکریہ ادا کرنا تو ایک طرف، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اسی شان بے نیازی کے ساتھ واپس چلے گی جیسے آئی تھی. عارف نے خالی سیٹ پر کچھ تلاش کرنا چاہا، کوئی کتاب، کوئی ورک، کوئی نشانی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب کچھ ساتھ لے کر گئی تھی سوائے اپنی آنکھوں کے، اور یہ آنکھیں اس روز سے عارف مصطفیٰ کے پاس تھی، اس کے دل کے کہیں بہت اندر. بس بہت ہو گیا عارف. اس بار امی جان کے تیور جارحانہ تھے. وہ مدافعت کے حربے آزمانے کی بس سوچ کے رہ گئے. آخر کب تک بے بنیاد طویلیں گھڑتا؟ تمہیں میرے اکیلے پن کا ذرا احساس نہیں؟ 2-4 بچے ہوتے تو میں کس لیے تمہارے پیچھے پڑی رہتی. انہیں اس کی بات بہت بری لگی تھی. امی کے اس بار پھر سے اس کی شادی پر اسٹارٹ کرنے پر تنگ آ کر اچھی خاصی بدتمیزی سے کہہ دیا تھا. اوف، آپ تو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے. اب کیا میں ویکینڈ پہ بھی لاہور آنا چھوڑ دوں؟
तो मत किया करो इतना बड़ा एहसान मुझ पर। जहाँ सारा हफ्ता हम दोनों मियाँ बीवी अकेले पर झक मारते रहते हैं, वहाँ ये 1.5 रोज भी अकेले गुजार लिया करेंगे। कितनी बार कह चुका हूँ मेरे साथ इस्लामाबाद चले, अच्छा खासा कुशादा फ्लैट है। लो भला हम क्यों अपना बसा-बसाया घर छोड़ के तुम्हारे किराए के दड़बे में उठ आएँ? मैं कब कह रहा हूँ कि आप सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए वहाँ हैं, मैं तो खुद वहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं गया। क्या पता कब ट्रांसफर हो जाए और कहाँ रहना पड़े। अच्छा आपकी तब्दीली आबो-हवा हो जाएगी, इस्लामाबाद कासा पुरफ़िज़ा शहर है। लेकिन लाहौर में हमारी सारी बरादरी, रिश्तेदार मिलने-जुलने वाले। अभी तो आप अपनी तन्हाई का गिला कर रही थी, इसने बात काट कर जताया। तो सारा खानदान 24 घंटे हमारे सर पर तो सवार नहीं रह सकता ना। इन्हें भी इसकी चालाकी पर गुस्सा आ गया। ना ही किसी ने ठेका ले रखा है हमारा कि जवान बेटा तो रस्सियाँ तोड़ा के सारी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद अत्थरे बैल की मानित घूमता फिरे और ऐरे-गैरे हमारी दिलजोई की खातिर यहाँ डेरे डाले रखे। ला हौला वला। वो सख्त बदमज़ा हुआ। आपकी बातों से तो लग रहा है कि जैसे आपकी नज़र में महज़ एक जानवर हूँ। रस्सियों से जकड़ना चाहती हैं आप मुझे। ये औकात है मेरी, आपके इकलौते नूरे नज़र की। इसने इनका ध्यान बटाने की गर्ज से नाराज़गी का ढोंग रचाने की कोशिश करते हुए ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू किया। अपनी उम्र देखो 26 साल के हो गए, अपना अच्छा कमा रहे हो। ठीक है, बहुत से लोग 30 वर्ष तक शादी नहीं करते, मगर कोई ना कोई वजह होती होगी इस तख़ीर के पीछे। किसी को ज़िम्मेदारियों के बोझ ने मारा होता है, किसी को रोज़गार का मसला होता है। तुम्हें आखिर क्या तकलीफ़ है? तुम अब मेरी वाहद औलाद हो। काश मेरे भी ढेर सारे बच्चे होते, मेरा आंगन भी भरा होता, किसी एक के जाने से बेरौनकी यूँ डेरे डाल के नहीं रह जाती। इनके आँसू गालों पर फैलने लगे तो आरिफ सारी ज़िम्मे ड्रामेबाज़ी भूल-भाल के इनके शानों के गिर्द बाजू फैला के बैठ गया। ठीक है, अब मैं साफ़ बात कह रही हूँ। अब मैं तुम्हारे किसी बहाने को खातिर में नहीं लाने वाली, भले तुम मुँह फाड़-फाड़ के मुझे अपने पीछे पड़ जाने का ताने क्यों ना दो। तुम्हारी ज़िंदगी पर इतना हक तो है मुझे कि जो चाहूँ फैसला करूँ। गज़ब खुदा का, हद होती है ढिठाई की। बस ये तय कि इस साल के आखिर तक तुम्हारी शादी होगी इंशाअल्लाह। मगर अम्मी, वो मुँह खोल के रह गया। इनका दो टोक अंदाज़ बावर करवा रहा था कि अब बहस की ना तो गुंजाइश और ना फ़ायदा। रात को खाने के बाद वॉक करते हुए इसने अब्बू से भी शिकायतें अम्मी के सख्त फैसले और ज़िक्र किया। इसकी ख्वाहिश बेजा नहीं, अलबत्ता तुम्हारे मुसलसल इनकार की कोई ठोस वजह नहीं। हाँ, अगर कोई ख़ास पसंद या शर्त है तो बिला झिझक अपनी माँ या मुझे बता दो, या फिर तुम्हारे ज़हन में अगर कोई ख़ाका है तो भी। प्लीज़ अब्बू जी, वो घबरा उठा। सीने के अंदर छुपा के रखे 2 समंदर नैन अचानक से ठाठे मारने लगे थे। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों से घबरा रही हूँ। इन्होंने खोजने वाली नज़रों से सिकुड़ा हुआ सर झुका के रह गया। तुम उम्र के जिस मरहले पर हो, अगर तुमने अब भी ज़िम्मेदारियों से भागना ना छोड़ा तो फिर तुम्हें बेलगाम रहने की आदत पड़ जाएगी। घर और घरदारी बंदिश लगने लगेगी। लेकिन कब तक? कभी तो तुम इस आज़ाद मगर तन्हा ज़िंदगी से उकताओगे, कभी तो तुम्हें किसी दूसरे के साथ की ज़रूरत महसूस होगी। माँ-बाप सदा नहीं रहते और बदकिस्मती से तुम्हारे पास बहन-भाई का रिश्ता भी नहीं। तब तुम्हें एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हर काम वक़्त पर ही अच्छा लगता है। अब्बू जी, अब आपने भी अम्मी जान की तरह डराना शुरू कर दिया। हकीकतन वो घबरा गया था मुस्तकबिल की इस हौलनाक मंज़र नगारी पर। अब वो कैसे इन्हें बताता कि इसके इनकार की असल वजह क्या है? वही तो खूबसूरत सी बड़ी-बड़ी आँखें और वही आँखों वाली। 1.5 साल हो रहा था मगर इन आँखों से वो एक पल के लिए पीछा नहीं छुड़ा सका था। यूँ लगता था जैसे वो चुपके से इसके दिल की कच्ची मिट्टी में अपनी आँखें बो गई हो। और आरिफ ने इतने ढेर सारे दिनों में इसकी अपनी वारफ़गी से इस कदर आबियारी की कि अब अंदर इन आँखों का एक पूरा शजरा हरा हो गया था। हर डाल पर वही आँखें, पत्ते-पत्ते पर वही पलकें। इसे तो खुद अपनी बेकरारियों पर हैरत होती। इस्लामाबाद से हर वीकेंड पर लाहौर आना एक आसान बात नहीं। इसके पास माकूल बहाना तो ये था कि अम्मी-अब्बू की तन्हाई के ख्याल से हर वीकेंड इनके साथ गुज़ारना चाहता, मगर असल वजह तो शायद ये थी कि वो इसे खोजना चाहता था। फ्लाइंग कोच के सफ़र से घबरा उठने वाला आरिफ मुस्तफ़ा ट्रेन और जहाज़ का सफ़र करना भूल चुका था। झेलम के स्टॉप पर कोच के रुकते बेताबी से नए चढ़ने वाले मुसाफिरों में से ढूँढने लगता। लाहौर से वापस आते हुए भी बाकायदा दुआएँ माँगा करता कि इस बार इसका एक बार इसका सामना फिर इसी आहो चश्म से हो जाए। लाहौर में इसने मेडिकल कॉलेजेस के कितने फेरे लगाए थे मगर बेसुध। एक बार तो वो लाहौर जाते-जाते रास्ते में जहलम उतर गया। गर्मियों की तातीलात थी, इसका अंदाज़ा था कि वो ज़रूर हॉस्टल के बजाय अपने घर पर होगी। सुबह से लेकर रात तक वो बेमकसद जहलम की गली कूचों, मोहल्लों, बाज़ारों, शॉपिंग सेंटर्स में फिरता। रात के कोच से वापस इस्लामाबाद किया तो बेतहाशा थकन का शिकार हो चुका था। सारे दिन की खोज बेफ़ायदा रही और कहीं ये उम्र भी बेसमरी ना गुज़र जाए, इसने हकीकत पसंदी से अपना एहतसाब किया। अब बस भी करो आरिफ मुर्तज़ा, कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? दुनिया के इस पुरहजूम मेले में किसी एक चेहरे को ढूँढना किस कदर मुश्किल काम है। ना चाहते हुए भी इनकी बात मानने पर तैयार हो गया। शायद इतने दिनों की बेमकसद तलाश ने भी इसे मायूस सा कर दिया था, या फिर वो वाक़ई अब्बू की खींची मुस्तकबिल की मंज़रकशी से खौफ़ज़दा हो गया था। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, कभी किते निकल गया, तो कभी किते निकल गया। मेरी पसंद, अम्मी के पूछने पर बताना चाहते थे। खूबसूरत आँखें इसकी कितनी बड़ी कमज़ोरी है, वो जो कोई भी हो इसकी आँखें बहुत हसीन होना चाहिए। लेकिन कहते-कहते रुक गया। क्या फ़ायदा, इन आँखों से बढ़ के हसीन तो नहीं हो सकती? इसने सोचा। नहीं, मेरी कोई पसंद नहीं। फिर भी कुछ तो सोच रखा होगा, कोई तो ख़्वाहिश होगी। लंबे बाल, नीली या काली आँखें, सरों का दिया झुर्ने सी हँसी। छोटी चच्ची ने शरारतन हँस के उगलवाना चाहा। इसके हामी भरते अम्मी ने पूरा वफ़द बुलवा लिया था, बहू की तलाश की मुहिम पर निकलने के लिए।
नहीं भई, बल्कि मैं तो सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि शादी चूँकि सिर्फ़ अम्मी की ख़्वाहिश पर हो रही है, इसलिए इनकी बहू ख़ालिसतन इनकी पसंद और मर्ज़ी की होगी। जैसी भी चाहे, जैसे भी वो पसंद करे। ये क्या कह रहे हो आरिफ? अम्मी इसकी बेनियाज़ी पर बुझ के रह गईं। इतनी गैर दिलचस्पी का इज़हार? खाला ने भी हैरत का इज़हार किया तो वो सँभल के बात भी सँभाली। गैर दिलचस्पी नहीं खालाजान, फ़र्माबरदारी। इसने लाड से अम्मी के शाने पर सर रख दिया। कमाल है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तमाम इख्तियारात सौंप रहा हूँ और आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं? आपकी पसंद पर भरोसा है मुझे। जो इंतख़ाब आप मेरे लिए करेंगी वो अच्छा ही होगा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझे इसकी तस्वीर तक दिखाने की ज़रूरत नहीं है और असल में तो ये शर्त इसने खुद अपने आप से डर कर आयद की थी कि बड़ी मुश्किलों से दिल को राज़ी किया रज़ामंद किया था, कहीं तस्वीर देख के फिर से एहतजाज पर ना उतर आए। कहीं इस चेहरे पर भी ना आँखों को तलाशना ना शुरू कर दे। वो सारी रात इसने अपने दिल से नज़रें चुराते गुज़ारी, तो कटोरा से नैन ढेरों गिले लिए इसे तक रहे थे, सवाल कर रहे थे। बस, बस आरिफ मुर्तज़ा, इतनी जल्दी हार गए। क्या पता हम यहीं कहीं हों, तुम्हारे बेहद नज़दीक, ढूँढते तो सही, तुम तो तलाशने के हक़ से भी दस्तबरदार होने जा रहे हो। जेहलम, शादी में सिर्फ 12 रोज़ रह गए थे जब इसे इत्तला मिली कि बारात जेहलम जाएगी। वो भरपूर तरीके से चौंक गया। अपनी शादी से इसका गैर दिलचस्पी का आलम था कि इसे ये तक कि लम्हे तक इसका रिश्ता कहाँ तय किया गया। रिश्ता इसकी गैर मौजूदगी में खुशउस्लूबी से तय हो गया। इनके खानदानी नजाबत, अम्मी-अब्बू का हुस्न अखलाक व खुलूस और खुद इसकी शानदार मुलाज़मत। शायद इन लोगों को यही मतलूब था, इसलिए महज़ लड़के की तस्वीर पर इत्तेफ़ाक कर लिया। एक बार दफ्तर से वापसी पर बराबर के फ्लैट वाले नुमान आगा ने बताया, कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछ-गछ करते फिर रहे थे, खैर तो है मियाँ? मेरे बारे में? कौन लोग? फौरी तौर पर इसे कुछ समझ में नहीं आया। एक तो बुजुर्गवार से थे, 2 गालबन इनके साथ ज़्यादा। क्या बात है, कहीं शादी-वादी का तो चक्कर तो नहीं चल रहा? नुमान आगा से उम्र का 10-12 साल का फ़र्क होने के बावजूद इसकी खासी बेतकल्लुफ़ी थी। हाँ, है तो कुछ ऐसी बात। इधर अम्मी ने एक सिलसिला शुरू तो किया हुआ, लेकिन अजीब लोग हैं, जासूसी करने कहाँ तक आ गए? क्या मैं इस कदर नाकाबिल एतबार या मशकूक हूँ इनकी नज़र में? इसे बुरा लगा। ये हक़ है उनका, आखिर लड़की वाले, इतना बिगड़ने की ज़रूरत नहीं। वैसे खासे शरीफ और सीधे-साधे लोग नज़र आ रहे थे। मैं तो इनके पूछने के अंदाज़ पर ही भाँप गया कि हो ना हो ज़रूर कोई रिश्ते वग़ैरह का चक्कर है। फिर आपने क्या कहा इनसे? इसने इश्तियाक से पूछा। नुमान आगा की चुलबुली तबीयत और शरारती फ़ितरत से आगाज़ है, इसलिए ज़रा-सी उम्मीद थी कि शायद इन्होंने इधर-उधर की हाँक कर इन्हें बरगश्ता कर दिया हो। कहना क्या था? यही कि हमारा शहज़ादा हज़ारों बल्कि लाखों में एक है, नेक, शरीफ, 2 वक़्त का नमाज़ी, मिलनसार। हट तेरे की! वो बड़बड़ा के रह गए। इन्होंने भी आज ही संजीदगी का चोला पहनना था। 2 वक़्त का नमाज़ी। आप भी आगा साहब। वो शिकायतन इन्हें घूरने लगा। क्या था जो कुछ और कह देते? मसलन मैं हेरोइन पीता हूँ, शराबी हूँ, रिश्वतखोर हूँ, हफ्ते में 4 गर्लफ्रेंड्स बदलता हूँ, मोहल्ले में दंगा करता हूँ, आधे शहर से कर्ज ले रखा है वगैरह-वगैरह। ओए होए! देख कैसी क्वालिटीज़ अपनी अगनवाइयाँ, धुर फिटे मुँह तेरे ते। बच्चों ये सब और वगैरह-वगैरह मैं उनसे तो नहीं कह सका, मगर डोंट वरी, अब तुमने फरमाइश की है तो ज़रा अपनी गर्दन छुरी तले आने दे दो। जब तुम्हारी दुल्हन यहाँ आएगी तब इससे ज़रूर कह दूँगा, तुम दिल छोटा मत करो। वो भरपूर तसल्ली तशवी करवा के अंदर चले गए। वो बात पक्की है, उन्हें शादी की तारीख मुकर्रर होने के दरमियानी अरसे में जितना भी लाहौर आने से कतराता रहा, मगर शादी के लिए तो इसे आना ही पड़ा। लेकिन न जाने क्या बात थी, वो जितनी पटियाँ दिल को पढ़ाता, कोई न कोई बात फिर से इसे डगमगाने पर मजबूर कर देती। क्या जहलम? मगर अम्मी आपने पहले तो नहीं बताया। अच्छा, वाक़ई नहीं बताया? वो भी हैरान हुई। शायद तुमने गौर नहीं किया होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़िक्र ही ना हुआ? अम्मी, क्या इसने मेडिकल की तालीम हासिल की है? अचानक इसे ख्याल आया और बेकरारी से पूछ बैठा। अब ये तो नहीं पता, वैसे इसी साल 16वीं जमात का इम्तिहान दिया। सीधी-सादी मिडिल पास अम्मी ज़्यादा देर ये तफ़सील नहीं बता सकी। मगर आरिफ, तुम भी अजीब हो, अगर डॉक्टरी पढ़ने वाली लड़की की ख्वाहिश थी तो पहले कहते, अब क्या हो सकता है? अच्छा चलें, इतना तो पता होगा कि वो जेहलम में पढ़ती रही है या किसी दूसरे शहर में? आखिरी चांस लिया गया। नहीं, पढ़ती तो जेहलम ही के कॉलेज में थी। अब इतना मुझे अच्छी तरह इल्म है, पता करके बताऊँ? नहीं, अब क्या पता करवाएँगी? अब जेहलम में पढ़ती है तो ज़ाहिर है वहाँ तो कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। वो मायूस होकर उठने लगा। लेकिन तुम्हें एकदम से डॉक्टरी पढ़ने वाली लड़की का ख़्याल कैसे आ गया? लो बताओ भला, अब फूट रहा है। रिश्ता करने से पहले मैं हर हज़ार तरीके से निगलवाना चाह के, कोई पसंद है तो बता दो ताकि बाद में माँ से गिला ना रहे। तब गूंगे का गुड़ खा के बैठे रहे। हाय हाय! रिज़वाना की नंद की लड़की डॉक्टरी के आखिरी साल में थी। इन्हें काफ़ी अफ़सोस मलते देख वो तलख सी हँस कर रह गया। आप भी कमाल है अम्मी, हर बात से अपनी मर्ज़ी के नताइज अख़ज़ कर लेती है। बेफ़िक्र हो जाओ, मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा था। दिल में जो एक ज़रा-सी उम्मीद उभरी थी वो फ़ौरन ही बुझ के रह गई। इसने फिर से कुछ कुरेदने का इरादा तर्क किया, लेकिन जो सामने आना वो बगैर कुरेदे भी ज़ाहिर हो जाता है। यूँ भी अब शादी में दिन ही कितने रह गए थे। माइयों के रोज़ से इसका नाम मालूम हुआ, अंगबीन नाज़। अंगबीन? यानी कि अंगबीन और वो मीरू। भला मीरू और अंगबीन का क्या रिदम? नहीं, वो नहीं हो सकती। उफ़ खुदा! क्या हो गया मुझे? क्यों हर बात में कोई न कोई नुक्ता तलाश कर लेता हूँ। मेहंदी की रस्म को दोनों फरीकों ने अपने-अपने घर में अदा करने का फैसला किया और ये मशवरा भी अब्बू जी का था। इनके पेश नज़र अपनी सहूलत से ज़्यादा लड़की वालों की आसानी थी। बारात के इस्तकबाल से 1 दिन पहले इन्हें इतना लंबा सफ़र तय करके सिर्फ़ इस रस्म की अदायगी के लिए लाहौर आना पड़ता। जबकि इससे कुछ देर कबल वो लड़के वालों की रस्म भुगता के बैठे हों। वक़्त और पैसे दोनों की ज़ियादत से बचने के लिए उन्होंने ये रस्म अपने-अपने तौर पर अदा करने का फैसला किया। अलबत्ता शगुन के तौर पर अम्मी, खाला और चच्ची के साथ जाकर माइयों के रोज़ ही मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियाँ, मिठाई वग़ैरह दे आई थी। मेहंदी के रोज़ इनकी तरफ से भी लड़की की भाभी, फूफी और अम्मी शगुन की मिठाई और जोड़ा ले आई लेकर आ गए।
अम्मी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेहंदी की तरह शादी भी अपने-अपने घर पर ही कर लें? इसकी अहमकाना तजवीज़ पर पहले तो इन्होंने जी भर के इसे मुद्रिबन अंदाज़ में घूरा, फिर इसके लहजे और चेहरे पे शरारत की कोई रमक ना पाकर ज़ोर की धुप रसीद की। चित्तर मारो मैनू विआह अपने-अपने घर करन ते। बावले हुए हो, सभी की शादियाँ होती हैं मगर मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्रर हुई है तब से तुम्हारी मत मारी गई है। ख्वाम-खा तबाही बके जा रहे हो, वाही तबाही बके जा रहे हो। बावला तो आपने कर दिया, वो झंझला गया। इसने खुद पर हर तरह से कदगन लगा दी। बड़ी शान के साथ वो बारात लेकर शहर में गया और बड़ी कामयाबी के साथ इसने अपना ध्यान भटकने से बचाया। खुश उसलूबी से निकाह अदा हो जाने पर सबके साथ-साथ इसने खुद भी अपने आप को मुबारकबाद दी। मुबारक हो आरिफ मुस्तफ़ा, शायद अब तुम इन आँखों के फैलाए जाल से बाहर निकल आए हो। जभी तो शहर की हदूद में दाखिल होने से लेकर अब तक तुमने एक बार भी इन आँखों को नहीं देखा सोचा। इन आँखों को नहीं ढूँढा और ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी तो थी कि दिनों महीनों वो इनकी आँखों को तलाशता रहा मगर नाकाम रहा और जब तलाश का इरादा तर्क कर दिया तो आँखें खुद ब खुद ही अचानक एकदम इसके सामने जगमगाने लगी। इतनी आसानी से आपकी जान बख्शी नहीं होगी, अब आप हमारे काबू आए जनाब। इस शौक सी आवाज़ पर इसने गैर इरादी सी निगाह उठाई थी और जिस्म का तार-तार जैसे झनझना के रह गया। एक पल के लिए तो भूल ही गया कि वो इस वक़्त कहाँ और किस हाल में बैठा है। आस-पास से गूंजता म्यूज़िक, बातों, पटाखों, चीखों-पुकार का सारा शोर-ओ-गुल मद्धम भनभनाहट में बदल तब्दील हो गया। माहौल की सारी अफ़रा-तफ़री और हंगामा परवरी अब तक धुंधले से स्लो मोशन पस मंज़र की तरह महसूस हो रही थी। वो सुरमई आँखें भरपूर तरीके से मुस्कुराती हुई फिर से इस पर छा रही थी। अरे! दूल्हा भाई का तो रंग ही उड़ गया। भई मीरू हाथ हौला रख यार, तेरा इकलौता-इकलौता बहनोई है। ओए होए! ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਬਹਿਨੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। जिंदे पीछे पागल सी उनदा बहनोई बन गया। ओए होए 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 होए! बड़ा भैड़ा होया। एक चुभती हुई आवाज़ ने इसे खींचकर नीचे ला पटका। वो खुश्क होते हलक को तर्क करने की कोशिश करता हुआ मुश्किल अपनी नज़रें झुका पाया। दिल जो तेरा घबराए, एक और शौक लड़की ने इसके नर्वस अंदाज पर चोट करते हुए तान लगाई जिसका फौरी साथ मीरू ने दिया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। दूध का भरा ग्लास इसके आगे न चाहते वो लहक-लहक के गा रही थी। भाई हिसाब किताब बाद में उतारेगा, लीजिए पहले ये नोश फरमाइए और जान बनाइए। आपकी हालत से तो लग रहा है जैसे अरसे से प्यासे हैं। ये प्यास मेरे अंदर बोई भी तुमने ही थी, इसे भड़काया भी तुमने ही है। वो इसे गिलामेज़ नज़रों से देखता हुआ ग्लास थाम के रह गया। अब आइयो, इसका रमा-रमा सवाल कर रहा था, इसने ग्लास लबों से लगा लिया और इस रूप में, इस रिश्ते से इसने कड़वा ज़हर घूँट भरा और ग्लास वापस बढ़ा दिया। हाय मीरू, तुमने क्या डाला था दूध में जो दूल्हा भाई के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए? अरे इनका मूड तो इसे देखते खराब हो गया था, लगता है साली पसंद नहीं है। खैर आप फ़िक्र मत करें दूल्हा भाई, इतने मायूसाना अंदाज़े लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारी अंगमीन भाभी बिल्कुल भी इस जैसी नहीं है। अरे कहाँ वो चंदे-आफ़ताब, चंदे-महताब और कहाँ ये डिलोपा। एक लड़के ने मीरू की बड़ी-बड़ी आँखों को निशाना बनाते हुए कहा। आरिफ ने एक नज़र फड़के से देखा, वाक़ई वहाँ कुछ भी ऐसा गैर मामूली नहीं था। चमकती गंधेवी रंगत, मौज़ू पेशानी, मुनासिब नाक, शानों से ज़रा नीचे आते गहरे भूरे सीधे बाल। सादा-सी मुस्कुराहट जिसमें कोई गुदगुदा देने वाली कैफ़ियत नहीं थी, कोई मुबहम से इशारे नहीं थे। बेकशिश मकानों में जैसे चाँद रातें थी, इसके सर चेहरे पे खुशगवार आँखें थी। इसे कुछ खबर नहीं हुई कितनी देर तक ये नोक-झोंक चलती रही, कब और किसकी मदाखलत पर इसका हाथ कॉलर तक गया और इसने कितने नोट निकाल कर सामने खड़ी सालियों के गुरु को थमाए। कब वो बाकी सबके साथ स्टेज से नीचे उतरी, इसकी हवास मुख्तल हो चुकी है, तुर्की गोया सलब होकर रह गई। वो तो मौका ऐसा था कि किसी ने इसकी खामोशी और खोए-खोए अंदाज़ को ज़रा महसूस नहीं किया। एक आध बार किसी बेतकल्लुफ़ दोस्त ने टोका ज़रूर दिया। तुम्हें तो सचमुच सांप सूँघ गया, आला नस्ल के मशरक़ी दुल्हा बने शर्म-ओ-हया के रिकॉर्ड कायम कर रहे हो। आरसी मुसहफ़ की रस्म ने इसे फिर से होश की दुनिया में ला खड़ा किया, ऐसा होश जो होश उड़ाने की हद तक सफ़ाक था। इसके सामने रखे आईने पर जो अक्स था वो एक हसीन चेहरे के तमाम दिलकश कदो-खाल भरपूर आराइश के साथ उजागर कर रहा था। सिंगार और गहनों के साथ तमाम और उसी लबासमात से आरास्ता वो पैकर अचानक इस वक़्त धुंधलाने लगा। जब 1 साल पहले का वक़्त सुरमई पूरे बादलों की तरह यहाँ से वहाँ तक छा गया। लो भाई हुण ते तेरा निकाह हो गया, हुण बीवी ते फ़ोकस कर ला। कितने जतनों के साथ ये मंज़र भुला पाया था, कितने बंधन बाँधे थे मैंने, कितनी फ़सीलें खड़ी की थी और कितनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये नया रिश्ता कायम करने चला था, पर क्यों वो चली आई? इसकी एक झलक ने फिर से मेरे कदम डगमगा दिए। क्या चंद लम्हे कबल इसकी आँखों को फिर से देख लेने के बाद ये चेहरा बल्कि कोई और भी चेहरा इस दिल को जचेगा? वो शोर मचाते दिमाग और खाली नज़रों के साथ आईने में अंगमीन का शर्मादा रूप देखता रहा और टूटता रहा। लो कट गई रात तेरे ख्वाबों में दिन गुज़रने में बहुत देर लगी। तेरी आँखों की तरह गहरा था ज़ख्म भरने में बहुत देर लगी। अहमरी हाँ, अहमरी, मीरू का नाम अहमरी था। अहमरी का अचानक यानी इसकी शादी के मौके पर नज़र आना कोई काबिल यकीन नहीं था कि अपने रिश्ते माबैन अनजाने में कायम होने वाले इस रिश्ते ने और इसे और भी बदहवास कर दिया। वो एक साफ दिल का सीधा-साधा इंसान था, ना कोई बहुत बड़ा अदाकार था, ना ही साधु सुन्नत। वो अपने और अहमरी के रिश्ते के तकद्दुस से आगाह थे, इसे अंगबीन का भी एहसास था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था इसके साथ एडजस्ट होने की और शायद वो कामयाब भी हो जाता अगर अगर अहमरी अंगबीन से वाबस्ता नहीं होती। वो दिलो-दिमाग की इस कशमकश से आजिज़ आ चुका था, इसके दिल में कोई चोर नहीं था, ना ही फितरत में ख़ासपानापन, लेकिन इसे एक नज़र का क्या करता? इसे एक लम्हे से सीरी कैसे हासिल करता? वो नज़र, वो लम्हा इसे कभी भूलता ही नहीं था।
दूर फीटे मुँह फिर तेरे। और ये ना भूलना ही तो था जो इसे चैन नहीं लेने देता। अहमरी से वो जानबूझकर एक फ़ासले पर रहता, किसी को इसका गुरेज़ और लिया दिया अंदाज़ ख़ास तौर पर अहमरी के हवाले से महसूस ना हो, इसलिए इसने ये संजीदगी खुद पर मुस्तकिल तारी कर ली। इसकी कोशिश होती कि ससुराल कम से कम जा, और ये कोशिश इतनी बाराबर होती कि कम से कम होते हुए भी तकरीबन ना होने के बराबर थी। अगर कभी इत्तेफ़ाक़न अहमरी से सामना हो भी जाता तो इसकी शौरी कोशिश होती कि इस पर एक नज़र डाले बिना इधर-उधर हो जाए। एक बार इसके रूखेपन से दिल बर्दाश्त होकर इसने सबके सामने गिला भी कर दिया। शादी के 6 माह बाद अंगबीन के ससुराल में पहली ईद थी और वो अपनी अम्मी और भाभी के साथ लाहौर ईदी लेने आई थी। आरिफ भी इसी रोज़ इस्लामाबाद से घर पहुंचा और इनकी आमद से लाइलम था। शदीद थकान और धुंध भरी सर्दी के बावजूद वो इनके आने के चंद मिनट बाद किसी ज़रूरी काम से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। अम्मी ने खासा बुरा महसूस किया और अकेले में इसे डपटने लगी। अभी तो तुम्हें इस कदर भूख लगी थी, बस खाना लगने वाला था, और ये तो देखो तुम्हारी सास आई हुई है, रिश्ते की भाभी भी साथ है। वो लोग दूसरे शहर से आए हैं और तुम चंद मिनट साथ बैठने की बजाय बाहर निकलो, कोई अदब लिहाज भी है या नहीं? इसे खुद भी एहसास था, लेकिन वो जिस चीज़ से बचना चाह रहा था वो अदब लिहाज और मुरब्बत सभी के लिए खासी नुकसानदेह साबित हो सकती थी। अहमरी के मुकाबिल बैठने का मतलब था इसके आगे खुद पर से इख्तियार खो देना। इसे एक नज़र देखने का मतलब था अपनी नज़रें बेलगाम कर देना, और वो बेलगाम होना नहीं चाहता था। अपनी इतनी कठिनाइयों के साथ जो महारें मुट्ठी में थाम रखी थी, वो महज़ इसकी पलकों के एक बार उठने और फिर से गिरने के तिलिस्म का शिकार होकर छूट सकती थी। इसी खदशे ने इसे हर मसलहत और मुरव्वत से बेनियाज़ कर दिया, और वो अपनी सास के सामने बड़े बरखुरदाना अंदाज़ में माज़रत पेश करता हुआ अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर जाने का ज़िक्र कर रहा था। जब अहमरी की आवाज़ इसे पूछते सुनाई दी, "आपको शायद हमारा आना ही पसंद नहीं है।" "नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बस ये है ही ऐसा।" इसने मुड़ के देखने की ज़हमत नहीं की। वज़ाहत पेश करना कैसे गवारा करता, अलबत्ता इसके हिस्से की सारी शर्मिंदगी अम्मी ने अपने ऊपर ले ली। "तुम भी अहमरी जो मुँह में आता है बोल देती हो।" इसकी अम्मी ने भी वज़ादारी निभाते हुए दामाद और समधन को खिफ़्फ़त से बचाया। "मर्द ज़्यादा 100 बखेड़े होते हैं, कब अचानक क्या काम निकला है कोई पता थोड़ी होता है। कोई शौक से तो ठंड में मारा-मारा नहीं फिरता। आप कुछ भी कह लें अम्मी, इतना तो मुझे पता है कि हमारे दूल्हा भाई को और किसी से ना सही मगर मुझसे तो ख़ास चिढ़ है ना?" बज़ाहिर वो शरारत भरे लहज़े में इसे बोलने पर उकसा रही थी, लेकिन अंदाज़ में एक भरपूर गिला भी था। वो फीकी-सी हँस के रह गया। अपनापन भी इसी बेगानेपन में है, पूरा आलम एक दीवानेपन में है। ये जो तुमसे मैं अनजान बना फिरता हूँ, सारी बात इसी अनजानेपन में है। बड़ी तो मुंडे ना होई है वैसे। अंगबीन अच्छी लड़की थी हर लिहाज से, हसीन, तलीम याफ्ता, सुलझी हुई और शाइस्ता। इसकी हमराही में आरिफ ने संभलने की खासी कोशिश की, किसी हद तक कामयाब भी रहा। कम से कम इस हद तक तो कि कोई इसके दिल के नहा खानों में छुपे इस राज की झलक तक नहीं पा सका। खुद अंगबीन भी नहीं, और शायद अंगबीन ने तो कभी आरिफ मुस्तफा के दिल में झांकने की कोशिश ही नहीं की, या तो इसे दिल में झांकने का फ़ानी नहीं आता था, या फिर इसे कभी इस हुनर को आज़माने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या इसको भी कभी आरिफ के दिल की तरफ जाने वाले रास्ते का इल्म ही नहीं हो सका। जो भी था आरिफ मुतमिन था। इसे अंगबीन की सटमोहर या इज्तनाब या गुरेज़ जो भी था गनीमत लगता। बाकी मामूलात में इसका तर्ज़ अमल नॉर्मल था। अम्मी और अब्बू दोनों के लिए पसंदीदा बहू साबित हुई। इसने जर्नलिज़्म में एमए कर रखा था और इसकी मालूमात आमा और रोज़ में गज़ब का था। अब्बू के साथ सुबह की चाय पीते हुए अखबार की ताज़ा-तरीन सुर्खियों पर सुपर हासिल तबसरा करती हुई ना सिर्फ़ इनसे शाबाशियाँ लेती, बल्कि घर के हर काम में अपनी मिशाकी और सलीका-शौरी का मुज़ाहरा करते हुए अम्मी का भी दिल जीतती रही। आरिफ से इसका वास्ता बस रस्मी सा था। इसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती हुए एक रोबोट की तरह इसकी ज़िंदगी में शामिल तो थी, मगर हमराह नहीं। आरिफ ने पहले-पहल से इसकी शर्म-ओ-हया पर मामूल किया और बाद में इस नतीजे तक पहुँचा कि शायद इसकी कमीन में ही हिस्सी नहीं। इसकी बेतवजीही की अदाई से इस कदर भाई कि इसने इसमें किसी किस्म की कमी न आने देने के लिए इसे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाने का फ़ैसला किया। खुद अंगबी ने इसके फ़ैसले की तायद करते हुए इसे काबिल अमल बना दिया, उसके दिल से रहा सा बोझ भी सिरक गया। "अम्मी जान, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं।" वो तकरीबन सिसकी तो पड़ी। "पागल मत बनो बेटा, अकेली क्यों रहने लगी तुम? आरिफ जो होगा।" इन्होंने इसे चमकारते हुए दिलासा दिया। "वो तो सारा दिन ही ऑफ़िस में गुज़ारेंगे, एक तो अजनबी शहर, वहाँ कोई जान-पहचान वाला भी नहीं, और दूसरा इतना खुश्क और वीरान सा शहर। हम मिलने आते रहेंगे, और लाहौर कौन-सा दूर है। आरिफ से कह दूँगी हर वीकेंड पे तुम्हें ले आया करेगा, बल्कि एक बार यहाँ और दूसरी बार जेहलम ले जाया करे।" जेहलम का नाम सुनकर वो बेधक उठा। "मुझसे बेकार की उम्मीद मत रखें, प्रमोशन के साथ-साथ काम का दबाव भी बढ़ गया। वीकेंड का मतलब होता है हफ्ते भर की थकन और टेंशन से वक़्ती रिलीफ़। ये तवक्को ना रखें मैं अपनी इस वाहद अय्याशी से हाथ धो लूँ और इस्लामाबाद से लाहौर और जेहलम और फिर वापस इस्लामाबाद तक के फेरे लगाता रहूँ। इसके साफ जवाब पर और हरासा होगी। ठीक ही तो कह रही हैं अम्मी। अभी आप खुद ही तो कह रही थी कि लाहौर कौन-सा दूर है, इस्लामाबाद से हम तीनों खुद ही महीने में एक आध बार वहाँ चले जाया करेंगे। इसने ममनून निगाहों से अंगबीन की तरफ देखा। समझदार बीवी बेकती है। पहली बार इसने मस्बत अंदाज में इसके बारे में सोचा, और ये तय पाया कि फिलहाल वो अकेला इस्लामाबाद जाएगा, अगरचे अम्मी को अब भी सख्त एतराज़ था। इन्हें गवारा नहीं था कि कल-कला कोई ताना दे के बहू अपने आराम और खिदमत के लिए पास रख ली, लेकिन अब्बू ने समझाया, "अभी अंगबीन ज़हनी तौर पर तैयार नहीं, इसे मजबूर मत करो। भरे पूरे घर से आई है, ससुराल के मुख्तलिफ माहौल में हम 2 बुड्ढों का दम इसलिए फिर भी गनीमत लगता होगा, इसलिए अकेले फ्लैट में रहने से घबरा रही है।" "हाँ, कहते तो आप ठीक है, जब मियाँ की याद सताएगी तो कैसे नहीं जाएगी वहाँ?" इन्होंने मुत्तफ़िक होते हुए सर हिलाया, और इसी तरह वो अकेला ही वापस लौट आए। ज़िंदगी एक मखसूस जगह पर रवां-दवां हो गई। दिल हर वक़्त किसी भारी सिल के नीचे दबा रहता। जिसे पाने की ख़्वाहिश की थी, उसे तलाशने में नाकाम रहना। एक दुःख तो ये था, जिसके ना मिलने को तकदीर जान के सब्र कर लिया, इसका ज़िंदगी के इस मोड़ पर अचानक नज़र आ जाना, जहाँ से वो किसी और राह पर कदम रखने जा रहा था। ये एक अलग हादसा था।
पहले फिर भी हफ्ता 10 दिन में घर का चक्कर लग जाता, लेकिन अब वो महीना-महीना घर जाने का नाम नहीं लेता। अंगबीन को देखकर मलाल और ज़्यादा बढ़ जाता, हालाँकि इसका क्या कसूर था? इस बात का एहसास होने के बावजूद इसे आरिफ इसे देखकर खुद पर तारी होती कनूतियत को दूर नहीं कर पाता था। दोनों फिटे मुँह पर तेरे होते। ज़िंदगी शायद हमेशा ही इसी बेकशिश डगर पर रवां-दवां रहती अगर अम्मी से फ़ोन पर वो खबर ना सुनाती। वो सुनती अजीब से एहसास में घिर गया। असूलन तो इसे खुश होना चाहिए था, खबर खुशखबरी तो थी, लेकिन सबसे पहले वो हैरान हुआ और फिर परेशान और खुश भी हो ही गया। हैरान इस बात पर हुआ कि क्या दिलों के बंधन बंधे बगैर भी कोई नया रिश्ता जन्म ले सकता है? सौंधा मेरे मुँह जो हुन कोई तू गंदी जी। परेशान इस बात पर कि अब इस नए रिश्ते के हवाले से तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ फ़राइज़ निभा सकेगा? जवाब हाँ में मिला। हाँ, आरिफ मुस्तफ़ा, जिस रिश्ते को वजूद में लाने वाले तुम खुद हो, इसकी ज़िम्मेदारियों से चश्मपोशी कर भी कैसे सकते हो? ये तो तुम्हारे ख़मीर में शामिल है। ये फ़र्ज़ तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा और पूरे दिल से निभाना पड़ेगा। दिल के मादगी पर हल्का-फुल्का और गरज से बात किसी खुशी को खुल के गले लगाने की हिम्मत की। अच्छा ही हुआ कि अंकबीन की ज़िद के आगे हार मान के सिमट गई। मैंने इसे अब तुम्हारे साथ भेजने में ज़बरदस्ती नहीं की। अम्मी फ़ोन पे हँस-हँस के सुना रही थी। मैं भी पागल हूँ, ना जाने मुझे पहले ही ख़्याल क्यों नहीं है। अच्छा ये कि अंकबीन मेरे पास है, ऐसी हालत में इसे किसी बड़े किसी बुज़ुर्ग की निगहदाश्त में ही रहना चाहिए। अकेली होती तो बच्ची कितना घबरा जाती। इसने सुकून का साँस लिया, लेकिन इस बार अम्मी ने एक नई फ़रमाइश कर डाली। या तो तुम अपना तबादला जल्द से जल्द लाहौर कर डालो या हर हफ़्ते आया करो। ठीक है, इसकी देखभाल के लिए मैं हूँ, लेकिन आखिर तकबीयत तो इसे शौहर से मिलती है। अम्मी, आपने तो लगता है औरतों की नफ्सियात पर पीएचडी कर रखी है। हाँ, बस तुम भी एक अच्छा बाप बनने की तालीम हासिल कर ही लो। अंगबीन के रवैये में भी इसे वाज़ेह तब्दीली की झलक नज़र आई। इस बार घर आते सबसे पहले इसकी निगाहों ने अंगबीन को ढूँढा। पहली बार इसके पास इसे कहने के लिए कुछ था और इसे सुनने के लिए भी। तब इसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में आई तब्दीली को खुले दिल से तस्लीम किया। शब-ओ-रोज़ कुछ सहल से लगने लगे, ना दिन को बेचैनी घेरती, ना रात को पछतावे और पशेमानी सताती। लेकिन शायद तकदीर पर को इसकी ज़िंदगी का आँख से आँख मिलाकर जीने का तरीका कुछ ज़्यादा निभाया। सब कुछ नॉर्मल ही था, इसकी गैर मौजूदगी में भी अम्मी से बाकायदगी से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती रहती। शहर की सबसे मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाती थी, जिसके मुताबिक अंगबीन हर लिहाज से फिट और सेहतमंद थी। इसलिए वो हर फ़िक्र से बेनियाज़ था। इसी बेनियाज़ी के आलम में हड़बड़ा के रह गया जब अब्बूजान को फ़ोन कॉल आई। फ़ौरन घर पहुँचो, अंगबीन बहुत सीरियस है। मगर अब्बूजी अभी तो वो हरासा हो गया। इतना तो जानता था कि गायनोकोलॉजिस्ट की दी गई डेट में भी पूरे 35 रोज़ बाकी थे। ये सवाल करने का वक़्त नहीं, पहली फ्लाइट से पहुँचो। कोशिश के बावजूद इसे कन्फर्म सीट नहीं मिल सकी, तो वो मज़ीद वक़्त ज़ाया ना करने के ख़्याल से बाय रोड ही निकल पड़ा। प्रमोशन के साथ ही इसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों मिल चुके थे। प्राइवेट अस्पताल के कॉरिडोर में अम्मी और अब्बू के साथ इसके सास-ससुर और साली दोनों साले भी माँ अपनी बीवियों के मौजूद थे। वो ठिठक गया। इन सब के पस मुर्दा चेहरे और मतवारा आँखें हज़ार वसवसे पैदा कर रहे थे। "आरिफ बेटे!" अम्मी सिसक पड़ी। अंगबीन की वालिदा भी तस्बीह के दाने गिराती हुई मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसके सलाम के जवाब में इन्होंने सुर्ख आंखें उठाकर बमुश्किल सर हिलाया। माँ है ना, शायद माँ के दिल को पहले खबर होगी होगी, इसलिए ये आज सुबह तड़के से अपने बेटे और बहू के साथ पहुंच गई थी। और तब तक तो बीना बिल्कुल ठीक ठाक थी। ब्लड प्रेशर भी कभी कभी मामूली सा हाई हो जाया करता था, और ऐसा तो इन दिनों होता ही है। मगर आज न जाने क्या, वो अच्छी भली बैठी गप्पे लगा रही थी, अचानक चक्कर आए, सहारा देकर ऊपर कमरे में ले जा रही थी। मैं एक तरफ से इसकी भाभी ने भी थाम रखा था। पता नहीं कैसे ये बेदम हुई और हाथों से निकल गई। देखते-देखते कई सीढ़ियाँ, वो फिर से रो पड़ी। आरिफ तसव्वुर करके लम्हे भर के लिए लरज़ सा उठा। लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं आप इसे बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही थी ऊपर वाले कमरे में जाने की, फिर अब इन दोनों का बेडरूम ऊपर था। इसके इस्लामाबाद जाने के बाद अम्मी ने अंगबीन को पेशकश की थी कि वो इनके कमरे के साथ वाले रूम में शिफ्ट हो जाए, लेकिन इसे अपना बेडरूम पसंद था, ख़ुसूसन इसकी आगे बनी मुगलिया तर्ज की बालकनी। उस बालकनी तक आती जामुन और सुंबल के पेड़ों की घनी शाखें। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अम्मी ने सख्ती से इसे ऊपर जाने से मना कर दिया। इसकी ज़रूरत की चीज़ा-चीज़ा अशिया साथ वाले कमरे में सेट की और बिला ज़रूरत इसका सीनियर चढ़ना बंद कर दिया। बस होनी को कौन टाल सकता है? जिस दिन अच्छी धूप निकलती ऊपर वाली बालकनी में बैठने को मचल जाती। अक्सर मैं साथ ही ऊपर चली जाया करती, लेकिन आज सुबह खैर से बहू के मैके वाले इसकी खबरगिरी को आ गए। साथ में एक अच्छी खबर भी लाए। मीरू का रिश्ता खानदान में कहीं तय हो गया था। हम अच्छे भले बैठे ये बात कर रहे थे कि बीना खैरियत के साथ फारिग हो तो मीनू की तारीख मुकर्रर की जाए कि अचानक बीना चकरा के गिर पड़ी। रंग पीला, फटक, हाथ पैर बेजान। इसके भाई ने फौरन बीपी चेक किया, खासा हाई था। ज़रा हवासों में आई तो बस एक ही तकरार के ऊपर जाना है, अपने कमरे में जाना है। हमारी गलती कि इसे सही तरह से थामने की बजाय बस सहारा दे रखा था। तब पता लगा जब किसी बेजान चीज़ की तरह वो हम दोनों के दरमियान खड़ी-खड़ी पट से नीचे गिरी और लुढ़कती गई। वो दोनों हाथों से सर थाम के वहीं बैठ गया। अंगबीन के भाई ने इसके कंधे पर तशवी भरा हाथ दराज किया। हम लोग फौरन इसे इमरजेंसी में ले आए। डॉक्टर खुद हैरान है कि अंगबीन का बीपी इतना शूट कैसे कर गया। अभी परसों तुम्हारी अम्मी हफ्तावार चेकअप करवा के लाई हैं। अब्बू ने मालूमात में इजाफा किया। और जिस वक़्त वो आईसीयू में अंगबीन को देखने की नीयत से जा रहा था, तो मद्धम आवाज़ में एक और हकीकत से आगाह किया। डॉक्टर्स को ब्रेन हैमरेज का खतरा है, क्योंकि बीपी कम नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऑपरेशन करने से भी कतरा रहे हैं, वरना अंगबीन की बिगड़ती हालत और हद से ज़्यादा एनीमिक होने की वजह से बच्चे की ज़िंदगी को खतरा लाक है। डॉक्टर तबिंदा के मुताबिक अगर 1 और आध घंटे तक सूरत-हाल नॉर्मल हुई, तो वो आखिरी हल के तौर पर ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। आधे घंटे से पहले डॉक्टर ने इमरजेंसी के तौर पर इसे ऑपरेशन के कागज़ात पर साइन करवा लिया। कँपकँपाती उँगलियों के साथ इसने इजाज़तनामे पर रज़ामंदी तहरीर की। बहुत सी दुआएँ और मन्नतों के हसार में अंगबीन ऑपरेशन थिएटर तक गई, और वो 2 घंटे, तवील 2 घंटे, 2 सदियों से भारी गुज़रे इन सब पर।
मुबारक हो बेटी हुई और खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि बिल्कुल मौजूदाती तौर पर बच्चे की माँ को भी जिंदा बचा लिया गया, वरना चांसेस तो तकरीबन ना होने के बराबर थे। डॉक्टर तबिंदा के कहे अल्फाज इन सब में जिंदगी की नई रमक दौड़ा के आरिफ की अम्मी, अंगबीन की अम्मी दोनों सजदा में शुक्र में की चली गई। ऑपरेशन रूम से आईसीयू में मुंतकिल करते हुए ऑक्सीजन मास्क और ढेर सारी पाइप से ढके इसके निढाल चेहरे को देखकर आरिफ के सीने पर एक खूंसा सा पड़ा। अगर जिसने कभी अंगबीन को इस तरह से नहीं चाहा था कि जैसे कोई अपनी नई नवेली मनचाही बीवी को चाहता हो, लेकिन इस बेजरर और सादा सी लड़की से कोई गिला शिकायत भी नहीं थी, बल्कि जब से इसके दरमियान ये रिश्ता कायम हुआ था वो अपने दिल में इसके लिए गुंजाइश महसूस करने लगा था। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੋਗ ਲਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾयद वो मीरू का रिश्ता ਜਿਹੜਾ तय हुआ उधर तो कोई ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ बीपी ਐਡਾ ਵਧਾ ਲਿਆ बीबी ने। महबूबा की हैसियत से ना सही मगर बीवी की हैसियत या फिर अपने होने वाले बच्चे के लिए वो इस वक्त इसे मौत के शिकंजे में जाते देखकर और जिंदगी की लेड़ियां रगड़ते देखकर इसे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, जैसे इन सब हालात का जिम्मेदार वो खुद हो। मेरी वजह से, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, मेरे बच्चे को दुनिया में लाने के लिए वो इतना सब कुछ कर रही है, आज इसकी जान पर बन गई, वो मौत से लड़ रही है सिर्फ और सिर्फ मेरी नस्ल को कायम रखने के लिए। ये है हमारा रिश्ता, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत। और मैं इस हकीकत को छुटलाए ख्वाब और ख्यालों की दुनिया में भटकता रहा, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को पूरी सदाकत के साथ निभाऊंगा, इसने खुद से अहद किया। अपने इस बच्चे को जिसने अभी चंद ही मिनट पहले इस दुनिया में आंख खोली थी, बिन माँ के देखने का तसव्वुर इसे हौला के रख गया। आरिफ मेरे बच्चे पहले सदके की दे गई यतीम खाने में भिजवाओ। अम्मी ने फौरन पर्स से हजार हजार के चंद नोट निकाले, वो पूरे जज्बात से इनकी आवाज कपकपा रही थी। अम्मी बस कुछ देर तक जादो जरा अंगबीन को। ना बेटा, मन्नत पूरी करने में ताखिर से काम नहीं लेना चाहिए, अल्लाह सोने ने भी तो हमारी दुआएं फौरन कबूल किया, फिर हम इसका शुक्र अदा न करने में देर क्यों करें। पकी पकाई देके तैयार मिलती थी, खरीद कर यतीम खाने पहुंचा और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। कॉरिडोर में अपनी सास को पैन करते देखकर और अहमरी को इसे संभालने की कोशिश में बेदम होते देख इसके पैरों वहीं बर्फ बन गए। सहमी हुई नजरों से इसने अम्मी की तरफ देखा, वो सख्ते के आलम में बैठी थी। अब्बू ने आगे बढ़ के इसे सहारा दिया। अब्बू जी, कब, कैसे? वो बड़ी दिक्कत से अल्फाज अदा कर पाया। बस अभी चंद मिनट पहले मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर ही मिला रहा था। इनका लहजा भी टूटा हुआ था। लेकिन डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि अब खतरे की कोई बात नहीं, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा, वो यका एहतजाजन चिल्ला उठा। हाँ, और इसे होश आया भी था। वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। इन्होंने इस बात में सर हिलाया। होश में आने के फौरन बाद इसने हम सबसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और तुमसे भी। मुझसे, और मैं, उफ, मैंने कहा भी था कि इसे पछतावा ने घेर लिया। न जाने वो आखिरी वक्त में मुझसे क्या कहना चाहती थी। कुछ देर तक वो अंदर अपनी माँ, बहन और तुम्हारी अम्मी से खासी बेहतर हालत में बातें करती रही। फिर अचानक, पता नहीं कैसे, इतने कामयाब ऑपरेशन के बाद शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो इसे तसल्ली देते रहे और वो बेजान कदमों को घसीटता रस्मी कार्रवाइयां पूरी करता रहा। आखिर इसे इस घर तक भी लेकर जाना था जहां महज 14 माह पहले से हजारों अरमानों के साथ ब्याह कर लाया गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फजर की अजान की आवाज इसे ख्यालों से खींच लाई। तो सुबह हो गई। इसने रात भर के तने असाब को ढीला छोड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। गर्दन और शाने अकड़ चुके थे। रात भर की जलती आराइशी लाइटों ने सुबह की अवलीन सातों के मलचके से उजाले को भी रोशन कर रखा था। लॉन में रात की दावत की तमाम बाकियात नुमायाँ थी, कुछ तरतीब से और कुछ बेतरतीबी से एक दूसरे के ऊपर धरी चेयर्स एक तरफ रोल करके रखे शामियाने और खास पर जा बचा बिखरे इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर्स, हड्डियां, कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें। कल की इतनी तवज्जो मेहनत से की सजावट तहस नहस हो चुकी थी, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। इसने सरगोशी की। फ्लावर्स अरेंजमेंट जिस पर इसने बड़े चाव से हजारों रुपए लुटाए थे, इसे एक बार फिर अपनी मुबारकियां बेताबियां याद आने लगी, जिस शादी के लिए इससे सरजद हुई थी। अंगबीन की मौत ने इसे हकीकतन दुख पहुंचाया। इसकी वफात के महज चंद दिन बाद भी अम्मी की ये बात सुनकर इसे धचका लगा। बीना ने मरने से पहले एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। शायद वो जानती थी कि इसका वक्त तमाम हो चुका है। वो सोचने लगा कि अंगपीन की आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है। वो चाहती थी कि इसकी बच्ची किसी गैर औरत की बजाय अपनी सगी खाला की आगोश में परवरिश पाए, किसी दूसरी औरत की बजाय अहमरी से हकीकी मोहब्बत और शफकत दे सकेगी। अम्मी ने आहिस्ता से बताया। लेकिन अम्मी, ये कैसे मुमकिन है? अहमरी की बात तय हो चुकी है और वो और कितना अरसा ये जिम्मेदारी निभाएगी। ना तो इसका उम्र भर गैर शादीशुदा रहकर बहन के औलाद पालने का एहसार मुझे गवारा, और ना ही ये मुझे मंजूर होगा कि मेरी बेटी किसी गैर के घर पले। सगी खाला होने से क्या फर्क पड़ता है? वो बुरी तरह उलझ गया। अम्मी ने गहरी सांस भरी, जैसे से कुछ समझाने में नाकाम रही हूँ। इसका हल भी बीना ने खुद ही तजवीज कर दिया था, और वो है अहमरी की तुम्हारे साथ शादी। अब कि इन्होंने साफ अल्फाज में बावर करवाया, वो फटी फटी आंखों, रत खुले लबों के साथ इन्हें देख कर रह गए। दिल ने फैलकर सुकड़ने से इनकार कर दिया। और शायद यही हल बेहतरीन और काबिल अमल भी। इन्होंने एक नजरे से देखा और शायद वो कुछ बोले। इस वक्त वहां मेरे अलावा बीना की माँ और खुद अहमरी भी मौजूद थी। बीना ने इनके हाथ थाम के वादा लिया, मैं सोच रही हूँ कि 10वें के बाद तुम्हारे अब्बू के साथ जाकर बाकायदा बात करूँ, पता चले कि इनके इरादे क्या हैं। इरादे? वो बड़बड़ाए। मगर आप तो कह रही थी कि बीना ने इनसे वादा। हाँ, वो तो है, लेकिन सोचती हूँ कि कहीं मरती हुई बेटी के कॉल से ज्यादा अहम जिंदा बेटी के अरमान ना हो जाए। अरमान? वो चौंका। हाँ, वाकई अहमरी की भी तो कोई मर्जी हो सकती है, कोई अरमान हो सकते हैं, कोई पसंद हो सकती है, और इस पसंद वाले ख्याल ने इसकी रूह तक ही सलब कर डाली। इस पर इंकशाफ हुआ कि खुद अजियती की हद करते करते बेशक वो अपने दिल पर जबरन ये एतराफ करवाता रहा कि इसे अब अहमरी से कोई दिलचस्पी नहीं, और वो इस इत्तेफाकी हादसे की गिरफ्त से खुद को कब का आजाद करा चुका है, मगर दर हकीकत वो अभी तक इन आंखों की सतह पर ही हलकुरे ले रहा था।
वो माँ है, जैसी अंगबीन की थी वैसी अहमरी की भी है। अम्मी इसकी खामोशी से थक कर फिर से खुद ही नतायज अखज़ करने लगी। फिर खानदान बरादरी का भी सवाल है, अपनी नंद के बेटे के लिए हाँ कर चुकी है वो, कहीं बात से फिरने की वजह से मसले ना पैदा हो जाए। ये भी हो सकता है कि अहमरी को एतराज़ हो तुमसे शादी करने में। इस साफ मगर शफ़ाफ़ तबसरे पे इसने तड़प कर इन्हें देखा, मगर हुआ ये कि इनके तमाम तर खदशे और आरिफ के वस्वसे से बेनाम व बेमानी रहे। इनके कहने से कबल ही अंगबीन की वालिदा ने इसको ये तज़किरा छेड़ दिया। वो अंगबीन की वफ़ात से अब तक यहीं थी, ना सिर्फ़ वो बल्कि मीरू भी। बहन जी, आपको तो याद होगा कि बीना जाते-जाते हमें क्या ज़िम्मेदारी सौंप गई है। वो कोई भूलने वाली बात है? मैं तो खुद इस दिन से बस इसी के बारे में सोचती रही हूँ कि वो हमें किस इम्तिहान में डाल गई। पहले मुझे भी ऐसे ही लगा, लेकिन अब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे इसमें सिर्फ़ इस बच्ची की नहीं बल्कि हम सबकी भलाई नज़र आई। वो बच्ची जो पैदा होते ही माँ की गोद से महरूम हो गई हो, इसके लिए सौतेली माँ ना मैं वहाँ सुकून से रह सकती थी और ना ही आप लोग मुतमिन होते। लेकिन मीरू वो बहन की औलाद को सीने से लगा के रखेगी। ये तो आप दुरुस्त कह रही हैं, आप इसकी बात अपनी नंद के बेटे से तय कर चुकी हैं। हो सकता है कि इस फैसले से आपके खानदान में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए या फिर अहमरी इसके लिए रज़ामंद ना हो। खानदान की मुझे परवाह नहीं, मेरे लिए ज़्यादा अहमियत मेरी मरती हुई बच्ची की आखिरी ख्वाहिश की है। और इससे भी बढ़कर के अपनी नवासी की खुशी और राह मीरू की मर्ज़ी का सवाल तो इससे मैं पूछ चुकी हूँ। अगर ऐसा तो फिर मैं मुतमिन हूँ। वैसे तो आरिफ से भी मेरी बात हो चुकी है, यूँ तो वो दूसरी शादी के बारे में सुनना ही नहीं चाहता था। मुझे मुतमिन करने के लिए कसम तक उठाने पर तैयार था कि वो ज़िंदगी भर दूसरी शादी का सोचेगा भी नहीं। लेकिन जब मैंने इसे बीना की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया तो ज़रा नरम पड़ा, लेकिन मशरूत तौर पर कि अगर आप लोग मुकम्मल रज़ामंदी और रहमनी की खुशी से इस पर तैयार हो तो ठीक है। फिर तो कोई मसला नहीं, 40वें के बाद बाकायदा बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि कल 10वें के बाद हम वापस जा रहे हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्ची को हम साथ ले जाएँ। इन्होंने झिझकते हुए मुद्दा बयान किया, लेकिन वो मानने में मुतामिल थी। एक अरसे बाद इस आंगन में किसी नन्हे बच्चे की आवाज़ गूंजी थी। इनका हौसला नहीं था किसे खुद से जुदा करने का। देखिए, एक तो आप और हम अब उम्र के इस दौर में जब पोते-पोतियाँ, नवासे-नवासियाँ गोदों खिलाने की आरज़ू तो बहुत होती है, मगर हिम्मत नहीं। इतने छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारी बहुत होती है, आप हलकान होके रह जाएँगे। और एक वजह और भी है, और वो ये कि मैं चाहती हूँ कि मीरू और बच्ची दोनों एक-दूसरे की आदत बन जाएँ। वो तो अभी से मीरू की गोद पहचानने लगी है। हाँ, ये तो है, दिल को ज़रा-सी तसल्ली हुई कि आखिर इनका खून लौट के इनके पास ही आने वाला है, और यूँ वो जाते-जाते तितली को साथ ले गई। इसे तितली नाम भी अहमरी ने दिया था, थी भी इतनी छोटी और नाज़ुक सी गुलाबी-गुलाबी रुई के गालों जैसी गुड़िया। 2 माह कैसे गुज़रे पता ही नहीं चला। अम्मी ने इसे फ़ौरन 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आने को कहा, और इसे अंदाज़ा हुआ कि बच्चा क्या हो सकती है। जिस समय एक नौउम्री वाली सनसनी-सी फैल गई। इसे अपना सादा-सा फ्लैट किसी तरह भी अहमरी के शान-ए-शान लग रहा था। फौरी तौर पर इसने सारा इंटीरियर चेंज किया और इंडोर प्लांट्स और लाउंज और बेडरूम में रखवाए। लिविंग रूम में भी कई कीमती डेकोरेशन पीसेस का इज़ाफ़ा किया। वो इस जगह और इस माहौल को बेहद हसीन बना देना चाहता था, जहाँ रहने वो आ रही थी। हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे, वरना वो शादी भी धूम-धड़क के और शान से करता। लेकिन इसने कुछ मनमानी तो कर ली। ऊपर वाला बेडरूम ख़ुसूसी तवज्जो से आरास्ता किया गया, फ्लावर्स अरेंजमेंट और डेकोरेशन माहिर से करवाएगी। अहमरी के लिए इस मोतिया रंग के कदर सादा मगर दिलकश अरूसी लिबास का इंतखाब भी इसने खुद किया। वो इसे बताना चाहता था कि इसे इसकी किस कदर चाह और किस कदर तलब थी। कितने खूबसूरत अल्फाज़ इसने ज़हन में मरतब कर रखे थे इन आँखों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, कितने जज़्बे छुपा रखे थे इस पर लुटाने के लिए। मगर अभी तो इसने अपने दिल की शिद्दतें पूरी तरह इस पर ज़ाहिर भी नहीं की थी कि इसके दिल का हाल मुकम्मल तौर पर मुनकशिफ हो गया। वो ना सिर्फ़ इससे गुरेज़ा थी बल्कि नाला और शौक़ी भी। उन्हें तो होना ही है। वो सारी रात ये सोच-सोच के थकता रहा कि आखिर इस कड़वाहट की वजह क्या हो सकती है। माँ सदके चली जावे, एड्डा तू छुन्ना काका दे काका चूचा तेनू पता ही नहीं है। अब बेशक तुम उसके शौहर हो, लेकिन एक वक़्त पहले तो तुम उसके वो थे ना, बहनोई थे, और वो भी तकरीबन डेढ़ 2 महीने पहले। ते डेढ़ 2 महीने बाद ओदा बहनोईये नू कवे कि मैं तो 2 साल पहले तो तेनू पसंद करना, ते ओने ते यही कहना कि तेरी वजह तो मेरी भैन मरी। बहुत सोचने के बाद दिलो-दिमाग बस इसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हुए कि वो सिर्फ़ बहालते मजबूरी अपने ख़ानदान के दबाव के ज़ेरे से या फिर बहन की आखिरी ख़्वाहिश के एहतराम में शादी के लिए तैयार हुई है। ते इदां ही है, होर ते ना तू एड्डा रहिंदा नहीं। अज़ान ख़त्म होते ही इसे एहसास हुआ कि अब घर में नमाज़ के लिए बेदारी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो अब्बू मस्जिद जाने के लिए निकलेंगे, मुझे यहाँ इस तरह देख के न जाने क्या सोचे, नाचार अपने कदमों का रुख इस अंदर की जानिब मोड़ना पड़ा। अपने कमरे के दरवाज़े के आगे वो रुक कर सोचने लगा, इसे दस्तक देनी चाहिए, हैंडल मोड़कर अंदर चले जाना चाहिए। न जाने वो सो रही होगी या ये सोचकर इसने एहतियातन हल्की सी दस्तक दी। कोई जवाब नहीं पाकर आराम से दरवाज़ा खोला तो बेड से ही उठ रही थी। इसे अंदर आता देख फिर से बड़ी एहतियात के साथ बैठ कर अपने पहलू में लेटी तितली को थपकने लगी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर अहमरी ने पलट कर लबों पर उँगली रखकर इसे खामोशी का इशारा दिया। आरिफ को लगा जैसे इस लम्हे इनके दरमियान कोई अजनबियत, कोई बेगानगी ना हो, और तितली के नन्हे से वजूद ने किसी रेशमी डोर से बांध दी हो। अहमरी के अपनायत भरे इस हार ने रात के तल्ख़ रवैये की सारी बदमज़गी ज़ाहिल कर दी। वाक़ई सब कुछ भूल के तबे पाँव इसके करीब आ खड़ा हुआ। पता नहीं कब वो तितली को यहाँ लेकर आई, पता नहीं कब इसने अपना रूसी लिबास तब्दील किया था। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के ढीले-ढाले कॉटन की कुर्ता शलवार और इस पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। सोच बैठी बीबी। रात के मेकअप का चेहरे पर हल्का सा निशान भी बाकी नहीं था, मासूम बालों की सीधी मांग में चमकते अफ़शा के ज़रात के। बाल एक ढीले से जूड़े में कैद थे, फिर शायद इसकी गहरी नींद से मुतमिन होते उठ खड़ी हुई। करीब खड़े आरिफ पर एक नज़र डाले बगैर वो सीधी ड्रेसिंग रूम तक चली गई और दीवार की अलमारियों के पट खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये लो।
आरिफ ने बेड की साइड टेबल की निचली दराज से जायनमाज निकाल कर इसके आगे की। यही ढूंढ रही थी तुम? शुक्रिया शुक्रिया, तुम मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए है मेरी। इसने अनदेखी दीवार गिराने की नीयत से पहला कदम उठाया। ये तुम्हारी शादी की पहली रात थी इस घर में, नए रिश्ते के साथ पहली रात, और इसमें भी तुम अपने फर्ज से गाफिल नहीं। इस मोहब्बत के बदले में मोहब्बत के सिवा क्या दिया जा सकता है? मैं तुमसे अहद करता हूँ हमारी कि आज से अभी से मेरे तमाम प्लीज। इसने हाथ उठा के इसे मजीद कुछ कहने से बाज लेने का इशारा किया। लहजे में हद बेजारी और तनफ्फर था। प्लीज आप अपने तमाम अहद अपने पास ही संभाल कर रखिए। मैं यहाँ आपसे अहदो पैमां बांधने नहीं आई, जिस फर्ज को अदा करने की नीयत से आई हूँ, इसके लिए ना मुझे शुक्रिया की जरूरत है, ना ही किसी और चीज की हाजत। इसने चबा-चबा कर कहा। आरिफ का दिल बुझ गया। और वैसे भी तितली के मामले में किसी पर कोई एहसान नहीं करी, सगी बहन की औलाद है वो। आप मुझसे नया रिश्ता ना भी जोड़ते तब भी मेरा और इसका ताल्लुक कमजोर नहीं था। मैं मानता हूँ, मगर मेरा कहने का मकसद तो सिर्फ ये था कि इतनी आला ज़र्फ़ी का सबूत तो कोई-कोई दे सकता है। इसने अमरी का दिल मोम करने की कोशिश जारी रखी। आखिर दुल्हन के रूप में माँ बनना कम आसान तो नहीं। और आपका अपने बारे में क्या ख़्याल है? इसने लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट सजाते हुए चुभती हुई नज़रों के साथ सवाल किया। अगर आप मेरी जगह होते, यानी आपकी शादी एक बच्ची की माँ से होती और वो दुल्हन के रूप में शादी की पहली रात अपनी बच्ची को थपकने में गुज़ार देती, तो क्या आप तब भी इसी तरह इसकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे होते? बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देने पर आरिफ की पेशानी शिकनों से पूर हो गई, जिसे अहमरी ने कुछ और समझा। देखा, इस बात का तसव्वुर करना भी आपको किस कदर नागवार लग रहा है। 1 मिनट अहमरी। वो गुस्से से खौल कर रह गया। सुलझू और शांत रहने के सारे इरादे ढह गए। तुमने भी तितली की माँ बन के कोई एहसान नहीं किया। अगर तुम इसकी सगी खाला ना होती, सिर्फ सौतेली माँ होती, तो क्या तब तुम्हें शादी की पहली रात इस कमरे में इसका वजूद गवारा होता? नहीं, कभी नहीं। वो शशतर खड़ी देखती रही और वो इसके करीब से गुजरता वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम के दरवाजे ने धड़ से बंद होकर इसे चौंका दिया। तितली भी इसे अचानक धमाके से डर के बेदार हो गई, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। चलो सांभो हुन। वो खामोशी से इसे मुख्तसर से बैग में पैकिंग करते देख रहा था। अम्मी अभी कुछ देर पहले तितली को अपने कमरे में लेकर गई थी। आरिफ ने एक बार फिर इसे मुखातिब करने की कोशिश की। अहमई, क्यों तमाशा बनवा रही हो जरा सी बात का? मैं आपके साथ इस्लामाबाद नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला, जिसमें किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं। यही हठधर्मी तब भी दिखा सकती थी, जब तुम्हारी शादी मेरे साथ की जा रही थी। आप बार बार मुझे ताना मत दीजिए। इसने एकदम से घूम कर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और वो वहीं महसूर हो गया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये शादी ना तो जबरदस्ती हुई और ना ही किसी ने मुझे मजबूर किया। हाँ, बल जबकि ये हकीकत है कि शादी के लिए मेरी रजामंदी की एक बड़ी वजह तितली है। आप भी ये मत भूलिए कि मैं यहाँ तितली की माँ बन के आई हूँ, आपकी बीवी नहीं। मुझे इसी के लिए रहने दीजिए। ना मुझ पर कोई हक जताइए और ना ही किसी किस्म के हक को मैं तस्लीम करूंगी। इसने हजार कोशिश की लहजा पत्थर करने की, मगर आखिर में अल्फाज थरथराए गए। आरिफ अब तक इसकी आंखों में खोया हुआ था, जो एक बार इस पर कहर बरसाने के बाद अब रुख फेरे आंसू बरसा रही थी। कैसे उतरूं पार? बादल बादल तेरी आंखें दरिया दरिया ख्वाब, कैसे उतरूं पार? इसकी मध्यम गुनगुनाहट पर वो चौंकी और नागवारी से यूं देखने लगी। मुबादा इसका दिमाग चल गया। वो जरा सा संभल गया। मेरी बेटी की माँ बनने के लिए तुम्हें मेरी बीवी तो बनना ही होगा। इसने न चाहते भी शोखी की जसारत की। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। वो बात की तह में उतरे बगैर रखाई से कहती, फिर से बैग की साइड पर या साइड पॉकेट चेक करने लगी। खैर यूं तो मत को, शौक तो बहुत है तुम्हें मेरे बच्चों की माँ बनने का। वो और खुला। इसके लिए तुम्हें मेरा हक भी तस्लीम करना पड़ेगा और मुझे भी हक जताने की हिम्मत करनी पड़ेगी। मुझे धमका रहे हैं आप? मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम कोई मुगविया नहीं हो जिसे मैंने हब्स बेजा में रखा हुआ और जिसे खौफजदा करने की नीयत से धमकियां दे रहा हूँ। मनकूहा हो मेरी, मनकूहा, जायज शरई बीवी। इसको किसी तरह नरम ना पड़ते देख आरिफ को भी अपना मसालेहाना रवैया तर्क करना पड़ा। जायज शरई मनकूहा बीवी, इसने चबा चबा के जताया। वो तो मेरी बहन भी थी, इसका भी इसमें क्या जिक्र? वो हैरान हुआ। जिक्र तो होगा आरिफ मुस्तफा। वो अजीब तरह से मुस्कुराई, जैसे इसे चैलेंज दे रही हो या खबरदार कर रही हो। आपके सामने इसकी सगी बहन बैठी है, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे साथ ले जाने का इरादा तर्क कर दीजिए। आपको सवाल मायूसी का कुछ हाथ नहीं आएगा। शादी के इस पहले हफ्ते पर इसकी इनकी तीसरी बार तफसीली गुफ्तगू थी, जो तल्खी पर खत्म हुई। वो इसे नापसंद करती थी, बल्कि शदीद नफरत करती थी। इसका अंदाजा तो इसके हर अमल से बखूबी होता है, लेकिन क्यों, वो ये जानना चाहता था। तू छोटा काका काका चूचा, तू तीनों पता नहीं है कि क्यों कर दी है जी। जब इन सुरमई बादलों से आंखों में अपने लिए खूनी आंधियां देखता, वो चीज इसके लिए सबसे ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती थी। पहली रात को भी वो इसी तरह गुस्से से खौलता बाहर निकल गया, और दूसरी बार जब शादी के तीसरे रोज वो 2 दिन के लिए अपने मैके जा रही थी, तो इसने सब कुछ भुलाकर पेशकश की। मैं परसों तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम 2 दिन की बजाय वहां रहने का दुरानिया मुख्तसर करते हुए सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम बना लो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चला चलता हूँ। एक रात रहकर कल वापस चले आएंगे। ये मेहरबानी किस सिलसिले में? त्योरी चढ़ाकर पूछा गया। मेहरबानी मेहरबानी कैसी भाई? ये तो रस्म होती है, जाना पड़ता है। हाँ, 2 रोज रहना जरा मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा जब आना हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। आप क्यों जहमत करते हैं? मैं आ जाऊंगी। वैसे ही जैसे अंगबीन आती थी, आप अपने असूल को तर्क कर रहे हैं। आरिफ को बहुत कुछ याद आ गया। अंगबीन भी मकलावे के वक्त अकेली गई थी। ससुराल वालों के बेहद इस्सार और अम्मी के समझाने बुझाने पर वो साथ जाने को तैयार नहीं हुआ था।
भई मुझे अजनबी लोगों में रहने से घबराहट होती है, इसलिए मेरी तरफ से तो माज़रत। इसने बड़ी रखाई से सास के मोहब्बत भरे स्टार के जवाब में कहा था। तो बेटा फिर कल आ जाना, सारी बरादरी इकट्ठी होगी, ये तो रस्म होती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी सौ-सौ सवालों को जन्म देगी, हम किस-किस को मुतमिन करते फिरेंगे। हाँ, हाँ, ज़रूर आएगा, ये भी कोई कहने की बात है। इसके बुरे मुँह में बूम बनाने की परवाह ना करते हुए अम्मी ने जल्दी से यकीन दहानी करवाई, मगर वो भी अपनी ज़िद का पक्का था। इस रोज़ अम्मी और अब्बू को अकेले जेल में जाना पड़ा। वो अम्मी की सलवातें ढीठ भरा सुनता रहा, मगर टस से मस नहीं हुआ। वैसे आरिफ तू जो-जो अपनी बीवी ना कहती है ना, तू इस तरह दी छितर से मुस्तहिक है। पुरानी बात याद करते इसकी समझ में हेमरी का तंज़िया लहज़ा भी आ गया। वो इसे क्या समझाता कि इस वक़्त इसके वहाँ न जाने की वजह क्या थी? इसकी खामोशी ने हेमरी को और बोलने पर उकसाया। ससुराल जाना, बीवी की ज़िम्मेदारी उठाना, ये सारे फ़राइज़ आपको बोझ लगा करते थे, एक नागवार बोझ। फिर अब आप ये नए असूल क्यों वज़ा कर रहे हैं? इसकी बातों का आरिफ के पास बड़ा खूबसूरत जवाब था, मगर इसे 3 दिन पहले अपने जज़्बों की बेसाख्ता इज़हार के जवाब में मिलने वाली इसकी पज़ीराई याद थी, इसलिए चुप रहा। और अब तीसरी बार भी ये बहस लाहासिल ही जारी थी। इस बार भी अहमरी के चंद फ़िक्रे आरिफ को तपा के रख गए। वो अंदर खोलता और हल्की सी दस्तक के साथ अम्मी अंदर दाखिल हुई। अहमरी ने फ़ौरन तितली के बारे में पूछा। सो गई है, शायद पेट में दर्द था इसलिए रोई जा रही थी। ग्रे वाटर पीते ही ऊँघने लगी। और तुम सुनाओ, किसी नतीजे पर पहुँची या वही फ़िज़ूल की ज़िद पकड़ रखी है? अम्मी ने प्यार से टपका। आंटी ये फ़िज़ूल ज़िद नहीं है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, ना तो मेरा वहाँ दिल लगेगा, ना ही मुझे वो शहर पसंद है, मैं यहीं रहूँगी। ये क्या बात हुई कि शहर पसंद नहीं? तुम्हारे अंकल भी सरकारी नौकरी में थे, ऐसे-ऐसे इलाकों में हुकूमत उठा के फेंक देती थी कि पूछो ही मत। सख्त गर्मियों के दिन मुल्तान और जैकबाबाद में गुज़ारे और कड़ाके की सर्दियाँ सकर्दू और एबटाबाद में। ऐसे-ऐसे इलाकों में भी रही हूँ जहाँ टाँगे पे बैठ के मीलों सफ़र करते वक़्त बदन की चोलें हिल जाती थी, मगर यही तो अज़दवाजी ज़िंदगी का हुस्न है। सब दुख-सुख इकट्ठे सहना पड़ते हैं। तुम्हारे अंकल की 18 साला मुलाज़मत में 9 बार तबादला हुआ और मुझे जाना ही पड़ा। तुम्हारा शौहर वहाँ, इस लिहाज़ से तुम्हारी गृहस्थी भी वहाँ होगी। यहीं रह के यहाँ रह के क्या करोगी? वही जो अंगमीन करती थी। वो दुरुस्त कह रही थी, हर बात में अपनी बहन का हवाला देना इसकी आदत बनता जा रहा था। वो भी तो इनके साथ इस्लामाबाद रहने की बजाय यहीं आपके साथ रहती थी। इसकी बात और थी, अम्मी ने कुछ कहना चाहा, मगर इसने बात उचक ली। इसकी बात और मेरी बात और कैसे? जब ये इसे साथ नहीं लेकर गए तो मुझे साथ ले जाने पर स्टार क्यों? और अगर आप अंगमीन को अपने साथ रख सकती थी तो मुझे क्यों नहीं? इसके बहस बढ़ाए चले जाने पर इन्हें ज़रा-सी नागवारी महसूस हुई, लेकिन बज़ाहिर इसका दिल बहलाते हुए मुस्कुरा के कहा, मैं क्यों तुम दोनों में फ़र्क बरतने लगी? तुम तो इसी का पड़तू हो। मसला ये नहीं कि मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकती, मसला ये है कि तुम शौहर का घर होते हुए भी यहाँ क्यों रहो? बीना के साथ तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो भी तो यहाँ रही है। इसके साथ ना जाने की क्या वजह क्या थी? वो न जाने क्या सुनना चाहती थी। अम्मी फ़ौरन कह देना चाहती थी कि इसके ना जाने की वजह भी इसकी ज़िद थी, जो इस वक़्त तुम लिए बैठी हो, मगर मसलतन असल बात छुपा लेना मुनासिब जाना, ताकि अहमरी अपनी ज़िद में और पक्की ना हो जाए। असल में बहू का साथ रखने पर कतई तैयार नहीं थी। अंगबीन की बात तो उन्होंने मजबूरन इसकी मर्ज़ी इसलिए चलने दी कि खुद आरिफ इसे साथ नहीं ले जाना चाहता था। दूसरे इनका मज़ाज अहमरी से मेल नहीं खा रहा था। जब से वो इनकी बहू बनी थी, इसके तेवर इन्हें ठीक अखुड़े-अखुड़े लग रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि इसके यहाँ रहने से सास-बहू के ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। जहाँ तक कि तितली का ताल्लुक था, इसके बारे में मुतमिन थी। अहमनी बिल्कुल माँ की तरह इसकी देखभाल करती, इसकी तकलीफ और भूख पर बेचैन हो जाया करती। आपने बताया नहीं कि इसके साथ ना जाने की वजह क्या थी? अहमनी ने सवाल इनसे किया, लेकिन सवालिया निगाहें आरिफ पर जमी थी। दरअसल इन दिनों आरिफ की मजबूरी थी, इसे फ्लैट नहीं मिल रहा था, इसलिए इसने खुद मना कर दिया था। खुद मना कर दिया? इसने पुरसोच अंदाज में दोहराया। लेकिन अब फ्लैट भी मिल चुका है, सब कुछ सेट करके रखा है इसने, फिर तुम क्यों इनकार कर रही हो? अम्मी शायद और भी कुछ हरबे आज़माती इसे मनाने के लिए, लेकिन तितली की आवाज़ पर लपक के उठी। अहमरी भी साथ ही खड़ी होगी। आप बैठे आंटी, मैं देखती हूँ भूख लगी होगी, फीडर बनाना है। नहीं तुम बैठो, आता है मुझे फीडर बनाना, और वैसे भी कुछ दिन तो मुझे पोती के लाड उठा लेने दो। आखिर मुझे भी तो लगे कि मैं दादी बन गई हूँ। कल तो तुम दोनों इसे ले जाने वाले हो। इन्होंने दानिस्ता जताया, वो कुछ कह भी नहीं सकी। अहमरी प्लीज़ एक बार फिर सोच लो। अम्मी के बाहर निकलते आरिफ ने मिन्नत भरे अंदाज में से रजामंद करना चाहा। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसे यूँ किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मगर इश्क इश्क क्या कुछ करवा जाता है इंसान से। तुम नहीं जानती मुझे इस दिन का कितना इंतज़ार था, कितनी दुआएँ की थी मैंने कि तुम एक बार वहाँ कदम रख दो। वो घर है हमारी, जिसमें तुम कदम रखोगी तो वो जन्नत बन जाएगा, मेरी जन्नत। तुम एक बार वहाँ आके देखो तो सही, मेरे इश्क की शिद्दतों पर अज़ खुद ईमान ले आओगी। वहाँ का चप्पा-चप्पा मैंने तुम्हारे लिए सँवारा है। बिल्कुल वैसे जैसे मेरे दिल का चप्पा-चप्पा तुम्हारे। बस कीजिए, अल्लाह के लिए बस कीजिए। वो जो दोनों हाथों में चेहरे पर रखकर सिसक पड़ी, आरिफ के लिए इसका रद्द-ए-अमल नाकाबिले फ़हम भी था और गैर मुतवक्किल भी। आरिफ ने तो छित्तर ऐसे बजने चाहिए ना, अरे सारा मीसनापन निकल जाए। मीसनापन क्या, जेड़ा बच्चा बनया होया भोलपन। मैंने आपसे कहा था कि ये मत भूलिएगा कि मैं अंगबीन की बहन हूँ, सौकन नहीं। मैं कैसे आपके सरमानों से सजे घर में कदम रखूँ जहाँ कदम रखने की इजाज़त मेरी बहन को नहीं मिल सकी? मैं क्यों आपके लिए जन्नत सजाऊँ जबकि आपने मेरी बहन के लिए दोज़ख दहका रखी थी? मैंने? वो हक्का-बक्का रह गया। अंगबीन से हज़ार कोशिश के बावजूद वो मोहब्बत नहीं कर सका था, बस इतनी कमी रह गई थी, वरना इसने इस बेज़रा लड़की के तमाम हकूक़ अदा करने की कोशिश की थी। अगर वो खुद इसके साथ चलने पर आमादा होती तो शायद वो ना चाहते हुए भी इसकी बात मान लेता कि बहरहाल ये इसका हक था। हाँ, आपने इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं, आपने इसकी हर ख़्वाहिश को पामाल किया, इसका हर हक गज़ब किया। ये सब तुमसे किसने कहा?
اس کے آنسو نے جب جب میں نے اس کے آنسو کا سبب جاننا چاہا وہ ٹال کے، لیکن دیکھ لیجیے ابھی آنٹی نے خود اعتراف کیا کہ اسے آپ کے ساتھ جانے کی کتنی خواہش تھی، لیکن آپ اسے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھے، اور آپ تیار ہوتے بھی کیوں؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کیجئے، کتنے پردے ڈالیں گے آپ اپنی مکروہ شخصیت پر؟ بکواس بند کرو ہیمری، یہ طعنہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اپنے خود ساختہ مفروضوں میں الجھ کر تم میرا نقطہ نظر سننے پر تیار ہی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کیا غم تھا بھی یا نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ جلد از جلد مر جائے، ہے نا، تاکہ آپ کا راستہ صاف ہو۔ احمری، تم میرے بارے میں اتنی غلط سوچ رکھتی ہو؟ وہ دکھ کے مارے ٹھہر گیا۔ اتنی بدگمان ہو مجھ سے؟ میرا یقین کرو، یہ جو تم کہہ رہی ہو میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، بہت پہلے سے چاہتا آ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ تمہیں یوں بھی پایا جا سکتا ہے۔ جو شخص ایک مقدس رشتے کی پامالی کرتے ہوئے ایک شجر ممنوعہ کو چاہنے کی جسارت کر سکتا ہے، وہ ایک ناجائز چاہت کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ سر تھام کے رہ گیا۔ او احمری، میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ میں جو کہتا ہوں تم اس کا الٹا مطلب نکال لیتی ہوں۔ میں کہوں بھی تو کیا؟ وہ ہار مان گیا۔ اپنا آپ دکھا سکتا تھا، میں بھی آگے جا سکتا تھا، لیکن میں مجبور بہت تھا، اس لیے تو دور بہت تھا۔ جڑی جڑی تو انگبین کیتیاں نا تیرے اگے آ رہی ہیں، لیکن مینوں انگبین دا بھی وچوں کوئی بخرا ہی مقصد قصہ لگ رہا ہے۔ فلیٹ کا لاک کھولتے ہوئے خود بخود اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر کچھ سوچ کے لب سہمے ہوئے انداز میں سکڑ کے بے دلی سے دروازہ کھولنے کے بعد اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ دروازے کو واک کرتے ہی اچانک اوپر سے پھولوں کی برسات ہوئی۔ وہ چپ چاپ کھڑا اپنے قدموں سے ذرا آگے گرے پھولوں کو دیکھنے لگا جو کسی اور کی پذیرائی کرنے کے منتظر تھے۔ یہ سارا اہتمام اس نے فون پر ہدایت دے کر اپنے دوست سے کروایا تھا۔ بیڈ روم کے پنکھے پر بھی پھولوں کی پتیاں رکھوائی تھی۔ آن کرتے پھولوں کی پتیاں گرنا شروع ہو جاتی، جب اس کے لاکھ سمجھانے اور امی کے بارہا نصیحت کرنے پر بھی مانے پر رضامند نہیں ہوئی، تب بھی اس کا دل نہیں چاہا فون کر کے سارے انتظامات نہ کروانے کا کہنے کو۔ نہ جانے وہ کیا سوچے، یہ خیال آتے وہ رک گیا اور بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کسی دلہن کی طرح سجے فلیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس کے بیڈ روم کی تو گویا شان ہی نہ ڈالی تھی۔ اس نے احمری کی دلہن بنی ہوئی انلارج تصویر سامان میں سے نکالی اور سامنے کی دیوار پر آویزا کر دی۔ گویا دلہن کے ماتھے پر سترنگا ٹیکا سجا دیا۔ موتیا رنگ کے عروسی لباس میں ہلکے پھلکے زیورات اور لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وسعت بلیک آئی لائنر کی حد بندی میں اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ لامبی پلکیں اٹھتے اٹھتے جھکی تھی، یا شاید دیر تک جھکے رہنے کے بعد دھیرے سے اٹھ رہی تھی جب اس کا یہ پوز کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوا تھا۔ وہ سب کچھ بھلا اس دلکش منظر کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا۔ تایا جان کا اپنی فیملی کے ساتھ جانے کی عمرے پر جانے کا پروگرام بن گیا اور انہوں نے اپنے گروپ میں بڑی پھپھو کے ساتھ ساتھ امی اور ابو کو بھی شامل کر لیا۔ عارف کو کچھ امید بندی وہ اکیلی وہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کی شدت سے خواہش تھی کہ ایک بار وہ یہاں آئے ضرور، وہ اسے اتنا پیار دے گا، اتنی محبت لٹائے گا کہ وہ اس کے جذبوں پہ مان لانے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن اس کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ جہلم جانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ امی الگ پریشان ہوئی اس کا فیصلہ جان کر۔ کیا اونگی بونگی ہانک رہی ہو میرو؟ وہ اپنی ناگواری چھپا بھی نہیں سکی۔ یہ جہلم جانے کی کیا تو کیا بھلا؟ یہ کیا بات ہوئی بہن جی؟ بچیاں کے میکے نہیں آیا کرتی؟ عارف کی ساس پورا مانتے ہوئے بولی۔ آتی جاتی ضرور ہے، مگر بچیاں اپنے شوہروں کے گھر بھی تو بسایا کرتی ہیں۔ وہ چپ کر کے کیا کہتی، اس معاملے میں بیٹی ان کی ایک بھی سننے پر تیار نہیں تھی۔ آنٹی، میں شادی کے بعد ایک بار بھی وہاں رہنے نہیں گئی، امی آئی ہوئی ہیں، اب ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، بعد میں پتہ نہیں کب موقع ملے۔ آپ کو تو پتہ ہے عارف سسرال جانا پسند نہیں کرتے۔ اس نے عارف کو دیکھتے ہوئے بطور خاص یہ جملہ جتا کر کہا۔ ہفتہ 10 دن رہنے کے بعد میں اسلام آباد چلی جاؤں گی۔ اس نے تسلی دی، حالانکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ ان کی روانگی والے دن کو بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کے اطمینان کے لیے فائدہ کر لیا۔ پتہ نہیں انہوں نے یقین کیا ہی نہیں، مگر مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ جو دل میں جانے کیا کیا سوچ کر آیا تھا کہ اسے منانے کے لیے یہ کہے گا وہ کہے گا، دل کی دل میں لے کر رہ گیا۔ تم بہت بری ہو احمری، بہت بری۔ اس نے چپکے سے گیلا کیا، وہ انجان بنی تتلی کو فراک پہنا دی جیسے کچھ سنا نہ ہو۔ اتنی بری ہو کہ تم سے نفرت ہو جانی چاہیے، مگر پتہ نہیں کیوں یہ نفرت کم بخت ہوتی نہیں۔ اتنی بری ہو تم کہ تم سے محبت کے دعوے سے مکر جانا چاہیے، مگر یہ محبت بھی کم بخت مکرتی نہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ تتلی کے مخملی گالوں پر بیبی روشن ملتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے نزدیک نیم دراز عارف کو دیکھا۔ صرف اس کا لہجہ شکستہ نہیں بلکہ پورے کا پورا کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ احمد کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، کمزور پڑنے کے خوف سے اس نے اگلے ہی پل وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام آباد سے آتے ہوئے اس نے احمری کے دل سے تمام قدورتیں مٹا لینے کا جو عزم کیا تھا، وہ اس کی مزید بڑی ہوئی اجنبیت دیکھ کر اپنے دعوے سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے اپنے جذبوں کی رسوائی منظور تھی اور نہ ہی اپنی محبت کی ذلت۔ وہ چپ چاپ اسے جہلم جاتا دیکھتا رہا، باری باری سارے گئے دریا پار اتارے گئے، ایک دو اپنے جیسے ہی اکھڑ پن میں مارے گئے۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی مگر دل سے بے چینی نہیں جا رہی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ اضطراب کس لیے؟ کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھ سے کچھ جرم ہو گیا، جیسے میں نے کسی کا دل توڑ دیا؟ کہ اس شخص کا دل توڑنا جائز نہیں جس نے میری بہن کا دل دکھایا؟ اس نے پڑھتے ہوئے احساس جرم کی پشیمانی کم کرنے کے لیے دلیل دی، مگر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ وہ اور گھبرا گئی۔ تم بہت بری ہو ایمری، بہت بری۔ کسی نے بہت دکھ سے گلا کیا۔ ہاں ہاں میں بری ہوں، مگر صرف بروں کے ساتھ۔ تم کون سا اچھے نکلے جس نے نکاح کے بول ادا کرنے کے چند منٹ بعد ہی بددیانتی کا مظاہرہ شروع کر دیا؟ کیا میں بھول سکتی ہوں تمہاری وہ پہلی نظریں جنہوں نے خطرے کا الارم تو تبھی میرے دل میں بجا ڈالا، مگر ان کا اصل مفہوم مجھے تب پتہ چلا جب شادی کے رات تم نے خود اقرار کیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب سے تم نے مجھے دیکھا۔ اف، گھن آتی ہے یہ سوچ کر کہ کوئی
शख्स इस कदर मकरूर और गलीज़ ज़हनियत वाला भी हो सकता है कि पहलू में दुल्हन बिठा के किसी और पर नज़रें डाल रहा हो। और वो किसी और पर भी कोई गैर नहीं, इसकी मनगूहा की सगी बहन, शायद अंगबीन सब जान चुकी थी। यही वजह थी इसके दुःख की, इसलिए दर्द इसकी आँखों में ठहरा रहता था। काश ऐसा ना हुआ होता, काश आरिफ मुस्तफ़ा तुमने ये सब ना किया होता तो मुझे अपनी बहन को दिया हुआ अहद निभाने में कितनी सहूलत रहती। अम्मी ने तो कहा था कि अगर मर्ज़ी नहीं तो वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगी, मगर मैं खुदगर्ज़ी नहीं दिखा सकी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती, मगर एक बीवी की हैसियत से। मेरी बीवी बनने के बाद, जबकि तुम तो अपने इस इश्क की दास्तानें मुझे सुना रहे थे जो तुम्हें अपनी बीवी की बहन से हुआ था। इस शर्मनाक तफ़सील को सुनने के बाद मैं कैसे तुम्हें कबूल कर दूँ? कमाल है मीरू, तितली कब से रोए जा रही है और तुम न जाने किन ख्यालों में मगन हो। अम्मी ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। सॉरी अम्मी, मुझे पता ही नहीं चला। वो नादिम होकर इनकी गोद में मचलती तितली को लेने लगी। वो कुछ देर खड़ी से तितली को टहलाते चुप कराते देखती हुई। पता नहीं क्यों मीरू, मगर मुझे लगता है कि जैसे किसी उजलत भरे जज्बाती फैसले ने तुम्हें मुश्किल में डाल रखा है। कहीं तुम अपने फैसले पर पछता तो नहीं रही? वो जो नन्ही तितली की किलकारियां देखते हुए अपने पुस्मर्दा ज़हन की थकान उतार रही थी, चौंक के रह गई। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने पूरी रज़ामंदी के साथ ये ज़िम्मेदारी उठाई है, पछताने या घबराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम खुश नहीं हो? तुम्हारे चेहरे पे खुशी के वो रंग नहीं जो नौबियाहतों के चेहरे पर होते। तुम में वो निखार और शगुफ्तगी नहीं जो सुहागनों का सिंगार होती है। इन्होंने कुरेदा। पहली धी को तो कदी ਏਦਾਂ ना पूछन दी तेनू नौबत आई अम्मा जी। ये सवाल आपने कभी अंगबीन से क्यों नहीं किया अम्मी? इसके सवाल पर वो गड़बड़ा गई। देखिए मेरे वाला सवाल कीता इन्हें। आपको मेरी नाखुशी नज़र आ गई, जबकि वो मैं आपसे अक्सर कहा करती थी कि बीना बहुत बुझी-बुझी सी रहने लगी है। इसकी आँखें हर वक़्त रोई-रोई सी रहती हैं और आप हमेशा टाल दिया करती थी मेरा वहम करार देकर। इसी वक़्त फ़ोन की बेल ने अम्मी की तवज्जो बाँट ली। हाँ behज़ाद बेटा, जीते रहो। बस बेटा अब तो बिल्कुल ठीक है। वैसे ही आधी बीमारी तो बच्चों को देखने से दूर हो जाती है। तुम्हारे मामू भले चंगे हैं जब से बेटी और नवासी घर आई हुई है। हाँ, हाँ, अपनी मीरू तितली कहते नहीं, असल नाम तो इल्तिफ़ात है। हाँ भई, मुश्किल नाम मीरू के सिवा कौन रख सकता है? ज़रूर बेटा, ज़रूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। हाँ, अभी कुछ रोज़ रहेगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफ़िज़। पापा को मेरा सलाम कहना, आऊँगी किसी रोज़। मुस्कुराते हुए इन्होंने रिसीवर रखा। इस अहमरी इस्तजाब से इन्हें देख रही थी। behज़ाद का फ़ोन था। वो इस बात में जवाब मिलने पर फिर बोली, फुप्पो की नाराज़गी खत्म होगी? अभी कहाँ, बार-बार तो मानने से रही। बार-बार? बोलची। हाँ, बस वो टालने के अंदाज़ में बोली। देखो गुस्सा इनका भी बेजानी, मगर इन्हें भी हमारी मजबूरी देखना चाहिए। अगर तो हमने किसी ऊँची जगह का लालच करते हुए behज़ाद से माली या तलीमी लिहाज से बढ़ते रिश्ते को फ़ौक़ियत दी होती तो इनका गिला जायज़ था। लेकिन हमने तो सिर्फ़ बेटी की ख़्वाहिश का पायस किया। कोई और लड़की आई आई होती तो हम नवासी की शक्ल देखने को तरस जाते और ना जाने क्या सलूक करती हुई बिन माँ की बच्ची से क्यों ठीक किया ना? हाँ, मगर ये सब तो आप इनसे बहुत बार कह चुकी हैं, वो मानने पर कब तैयार थी, फिर अब ये behज़ाद का फ़ोन आना-जाना। behज़ाद भला लड़का, और तुम्हें तो पता है बचपन से इस घर में इसका आना-जाना है। अपने मामू से बहुत प्यार करते हैं, इससे कोई शिकायत नहीं। अपनी माँ को भी समझाता रहता है, कह रहा था वक़्ती गुस्सा उतर जाएगा। तुम्हारे आने का सुनकर बहुत खुश हुआ, तितली को देखने आएगा कल या परसों। वो सर हिला के रह गई। कमाल है यार, कहाँ है तुम्हारी बेगम? तुम तो बड़े दावे कर रहे थे कि आगा साहब आपकी बेगम की धाक जो पूरी बिल्डिंग में फैली हुई मेरी बेगम के आते ही ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ तुम अकेले हाथ लटकाए आगे। कहाँ है तुम्हारी बेगम और तुम्हारी नन्ही परी? सलमान आगा ने शोर मचा दिया। परी नहीं आगाजान, आगा साहब तितली। हाँ यार वही, खैरियत तो है? दरअसल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैंने साथ लाना मुनासिब नहीं जाना कि कहीं आबो-हवा की तब्दीली से तबीयत मज़ीद खराब ना हो जाए। इसलिए वो अपने मैके चली गई, मगर कुछ दिन के लिए आ जाएगी जल्दी। तबीयत? वो शरारतन मुस्कुराई। कहीं ये तबीयत की खराबी वो तो नहीं जो 1.5 साल पहले भी हुई थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो छेंक गया। शर्मा क्यों रहे हो यार? क्या अगर ऐसी बात है तो मेरा ख़्याल है इन्हें ले ही आओ। कहीं तुम्हारी वालिदा फिर से इनकी निगहदाश्त के बहाने इन्हें चंद माह के लिए मज़ीद रोक लें और तुम यहाँ मजनू बने उदास-उदास गीत गुनगुनाते फिरो। वो और दूसरे कहिए बाबक मीन के हाथ साथी मौत है, फिर अमेरिकी से दूसरी शादी से अनजान थे। बात छुपाने की बजाय कोई ख़ास वजह नहीं थी। जब अब्बू के फ़ोन पर यहाँ से इमरजेंसी में रवाना हुआ तो सभी जानने वालों को खबर थी कि इसकी बीवी के यहाँ चंद रोज़ में वलादत मुतवक्का है। और जब इनके फ़ोन खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इसे मौसूल होना शुरू हुए, तब तक ना सिर्फ अंगबीन की वफ़ात हो चुकी थी, बल्कि अम्मी से अहमरी के हवाले से नए रिश्ते की बाबत आगाह भी कर चुकी थी। कुछ सोचकर इसने सिर्फ अपनी बेटी की वलादत की खुशखबरी सुनाई। वापस आने के बाद सबने दरियाफ्त किया, भाभी कहाँ है? तुम तो कहते अब वो यहीं रहेंगी। दरअसल वो बहुत पहले फैसला कर चुका था कि बीती बातों को भुलाकर नए वलवले के साथ खान की जिंदगी का आगाज करेगा। इसने इरादा कर रखा था कि बाप बनने के बाद बच्चे और बीवी को लेकर यहाँ आएगा। ये तो किस्मत की बात थी कि इसे अपने इरादे पर इस तरह अमल करने का मौका नहीं मिल सका जैसे कि इसने सोच रखा था। अंगबीन बहुत कम वक्त के लिए इसकी जिंदगी में आई, लेकिन इसने अपने फैसले का जूका तो रखते हुए अहमरी के साथ आने का ख्वाब आंखों में सजा लिया। इसीलिए सब सवाल करने वालों को ये कहकर टाला, अभी कहाँ, बच्ची बहुत छोटी है, 1.5-2 माह तक लाऊंगा। 40वें के बाद इसका निकाह मुकर्रर था, इसलिए 2 माह तक का। और जब 2 माह बाद भी अहमरी के कोरे जवाब से इसे अकेले आना पड़ा तो ये बहाना गढ़ा, अम्मी नहीं मानती कि इतनी सर्दी में इस्लामाबाद बच्ची को ले जाया जाए। वैसे भी तुम्हारी भाभी से अकेले बच्ची संभलती नहीं, और जरा बड़ी हो जाए फिर लाऊंगा। और इस बार आगा साहब के इस्तफसार पर इसने अहमरी की खराब तबीयत का बताकर जो जवाब सुना, वो सब कुछ सोचने इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया।
मीरू तुम तो वैसी की वैसी हो, बहजाद ने इसे देखते तबसरा किया। तो तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक कि अब तक मेरे सींग निकल आने चाहिए थे। वो किसी बात पर चिड़ी बैठी थी, सो चिड़ा हुआ जवाब दिया। देखा, बदमजाजी भी जू की तू है। कुंद ज़हनी में कुछ छुपाका हुआ या वो भी? इसने फातिहा पढ़ने के अंदाज में हाथ फेरे चेहरे पर। अरे ये है तितली। भाभी की गोद में तितली को देखकर वो एकदम उठा। इसका भरपूर इश्तियाक और बेचैनी अहमरी को चौंका गई। ये तो बिल्कुल हूबहू अंगबीन है। इसका लहजा भीगा हुआ था और शायद बल्कि भी। इसलिए वो नजर झुका के तितली के माथे पर प्यार करने लगा। अंगबीन तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है ना? अहमरी को कुछ ख्याल आया तो वो सारी कौफत फुलाई इसके पास आ बैठी। तुमसे बहुत सी बातें करती होगी, ये क्यों पूछ रहे हो तुम? बताओ ना, वो तुमसे हर बात करती थी, कभी इसने तुमसे अपने ससुराल या शौहर की कोई बात की? इसने राजदारी से पूछने पर मुस्कुराया। अंगबीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर शादी से पहले, बाद में तो टालो मत। इसने बुरा सा मुंह बनाया। मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम ये सारी तफ्तीश किस सिलसिले में करी हो? कोई मसला है क्या? अब वो इसके पीछे पड़ गया। दोस्त तो मैं तुम्हारा भी हूँ, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो अगर तुम्हें ससुराल में कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, बस एक उलझन सी है, वो झिझकते हुए बताने लगी। कैसी उलझन? वो संजीदा हो गया। तुम ये मत समझना कि चूंकि तुम्हारी शादी पहले मुझसे तय थी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सच तो है कि मुझे तुम्हारा वहाँ शादी करने का फैसला पसंद नहीं आया था। ठीक है कि तितली की जिम्मेदारी निभाना भी जरूर था, लेकिन ये इसका वाहद हल तो नहीं था। दरअसल अंगबीन की अपनी ख्वाहिश थी कि मैं ही इसकी बच्ची को पालूं। नहीं मीरू, वो सिर्फ ये चाहती थी कि। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ इसका इतना मुश्किल नाम किस लिए रखा तुमने? इल्तफात। तुम्हारी मुश्किल पसंदी की आदत गई नहीं। बात को बदलने की कोशिश मत करो। क्या कह रहे थे तुम कि अंगबीन क्या चाहती थी? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसने फैसला अपनी बच्ची के लिए नहीं, अपने शौहर की खुशी के लिए किया? इसे भी खदशा सा गुजरा कि होना हो अंगबीन जरूर आरिफ की घिनौनी ख्वाहिश से आगाह हो चुकी होगी, इसलिए। शौहर? इसने तंजिया उनकारा भरा। शौहर की खुशी, जिसे इसने अपना शौहर ही तस्लीम नहीं किया, इसकी खुशी का ख्याल वो करती? अच्छा, मैंने कहा ना कि छोड़ो इस बात को, वो अब नहीं रही। मैं इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे इसकी रूह को तकलीफ पहुंचे। बात तो तुम्हें करना पड़ेगी बहजाद। वो जानेगी कि वो ऐसा कुछ इल्म रखता है जो वो नहीं जानती। मैं बदमजाज हूँ, कुन ज़हन हूँ, मुश्किल पसंद हूँ, लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैं ज़िद्दी भी बहुत हूँ। तो फिर सुनो, अंगबीन ने मरते हुए तुमसे आरिफ से शादी करने का अहद सिर्फ इसलिए लिया था कि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। हेलो, मैं क्या सी ना, किस्सा विचो है। क्या? मगर क्यों? क्योंकि वो मुझे चाहती थी। वो सर झुकाकर तितली के गाल से हिलाने लगा, जो पता नहीं कैसे इसकी बाहों में आती सो गई थी। हालांकि वो अजनबी चेहरों से खासा घबरा उठती थी। तुम्हें? और तुम? मैं भी। तो फिर ये आरिफ बीच में कहाँ से आ गया? और मैं कहाँ से शामिल हुई इस किस्से में? हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मैंने अम्मी को बता रखा था। वो कहती थी जिसे मुझे जिस दिन मुलाजमत मिली वो दूसरे दिन रोज अंगबीन का हाथ मांगने चली जाएंगी। किस्मत की बात कि मैं भी फारिग ही था कि आरिफ का रिश्ता इसके लिए आ गया। वो हर लिहाज से मुझसे बेहतर था। उम्दा मुलाजमत, इकलौती औलाद, मुख्तसिर घराना, साहब जायदाद। मामूर मानी ने फौरन हाँ कर दी। अंगबीन से पूछा, मगर हमारे यहाँ बेटियों से रजामंदी से बस रस्मी तौर पर ली जाती है। इसने इनकार करना चाहा, मगर जवाब क्या पेश करती, जबकि मुमानी के पास आरिफ की हमायत के लिए दलाइल थे। वो एहतजाज कर तो रही थी, मगर वजह बयान नहीं कर पा रही थी। मेरे बहुत मजबूर करने पर अम्मी मेरा रिश्ता लेकर गई। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मेरी तालीम भी आरिफ के मुकाबले में कम थी। अगर मुलाजमत मिलती भी तो इतनी शानदार नहीं होती। मामू ने बहन का दिल रखने को दिलासा दिया कि बहजाद को मुलाजमत मिल जाए तो अहमरी के बारे में वो जरूर सोचेंगे। अलबत्ता अम्मी के जाने से अंगबीन को हौसला मिला और इसने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। लेकिन इसकी ये जुर्रत भी बेफायदा रही। वो आरिफ से ब्याह दी कि तुम शायद हॉस्टल में रहने की वजह से लाइलम नहीं। तो ये बात थी। वो सोचने लगी, इसे याद आने लगा अंगबीन का मैके आते गुमसुम हो जाना, अम्मी अब्बू से रखाई से पेश आना। वो इस अंगबीन को ससुराल में पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात की वजह समझती रही। और मंगबीन की खराब हालत, हाँ, इस रोज अम्मी से यही खबर तो दे रही थी कि इसकी हालत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गई। तो इसका मतलब है शादी के बाद भी वो तुम्हें भुलाने में कामयाब नहीं हुई? कामयाब? बहजाद ने इसे जताने वाली नजरों से घूरा। मीरू, कामयाबी का सवाल तब पैदा होता है जब कोशिश की जाए, और अंगबीन ने तो सिरे से ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो मुझे फोन करती रहती थी। इसने शर्मिंदा से एतराफ किया। मैं इसे बहुत मना करता था, बहुत समझाता था। ये सच है कि मुझे भी इससे मोहब्बत थी। इसका किसी और का हो जाना मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अगर वो कोई सी भी लड़की होती तो मैं ज़मीन आसमान एक कर देता, मगर मीनू वो मेरे बहुत प्यारे मामू की बेटी थी, मेरे खानदान की इज्जत। और जब वो अपने ससुराल से मुझे रोते हुए फ़ोन किया करती तो मैं भूल जाता कि इस लड़की को मैंने चाहा है। मुझे सिर्फ ये याद होता कि मेरे खानदान की इज्जत खतरे में, मेरे मामू की नेकनामी पर कोई हरफ ना आ जाए। इसलिए कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की, मगर वो न जाने क्यों ऐसी हो गई थी। वो तो बहुत जिम्मेदार, बहुत हसास, बहुत ही मैच्योर लड़की हुआ करती थी। जिद्दी और नासमझ तो मैं तुम्हें कहा करता था। फिर पता नहीं कहाँ से ये बगावत और ज़िद इसके अंदर उतरा, इसलिए वो अपने शौहर के साथ इसके घर नहीं गई। फ़ख्रिया बताती थी कि मेरे पास इसके लिए रखाई के सिवा और कुछ नहीं। वो ख़ाइफ़ होके खुद ही मुझसे खिंचा-खिंचा रहता है। मैं तो सख्त खौफ़ज़दा हो जाता था इसकी बातें सुन-सुन कर। इसे सब कुछ भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी ईमानदारी से गुज़ारने का मशवरा देता था कि कहीं इसकी ना आकबत नाअंदेशी इसका घर बर्बाद ना कर दे। लेकिन पता है वो क्या समझी? इसने खुद ही फ़र्ज़ कर लिया कि मैं अब इसकी बजाय तुम में इंटरेस्टेड हूँ। हमारी शादी तय हो जाने की खबर इसके लिए शॉक थी। शायद इसे पक्का यकीन हो गया था। हालाँकि मैं तुमसे शादी करने पर सिर्फ़ अम्मी की वजह से तैयार हुआ था कि मामू इनके इकलौते भाई हैं, कि मेरा इनकार दोनों के ताल्लुकात में बिगाड़ ना पैदा कर दे। लेकिन वो कुछ और समझी और मुझसे बदला लेने की खातिर, मुझे तुमसे शादी करने से रोकने की खातिर तुम्हें अपने अहद का पाबंद कर दी। किस कदर गलत अंदाज़ा लगाया इसने मेरे बारे में। हाँ, वो गुमसुम बैठी खुला में देख रही थी। सब कुछ इसके गुमान से कितना मुख्तलिफ था। बहज़ाद की बात पर इसकी चुप टूटी।
ہاں، ہم کتنے غلط اندازے لگاتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ وہ اس کی گود میں سوئی ہوئی تتلی کو نرمی سے اپنی گود میں منتقل کرتے ہوئے اندر لٹانے چلے گی۔ بہزاد نہ بتاتا تو شاید میں یوں ہی انگبین کی مظلومیت اور بیچارگی کے بدلے اس شخص سے لیتی رہتی جو قصوروار تو ہے مگر اکیلا نہیں۔ اگر وہ بددیانت ہے تو خیانت تو میری بہن اپنی بہن نے بھی کی۔ بیوی ہوتے ہوئے وہ پرانی محبت سے تعلق برقرار رکھے ہوئے تھی۔ پھر میں کس لیے بدلہ لوں؟ کس لیے خود کو یہ سزا دوں؟ ہاں، یہ سزا مجھے ہی تو مل رہی ہے۔ زمانے بھر کی نظروں میں بری بن رہی ہوں اور تتلی کے ساتھ بھی انجانے میں ناانصافی ہو رہی ہے، صرف اور صرف میری وجہ سے وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہے۔ خود احتسابی نے اسے احساس دلایا کہ وہ ایک بے مقصد جنگ لڑ رہی ہے۔ چلو تیری بھی عقل شریف سے گل آئی۔ اور اس کارڈ نے اس پر لکھے چند الفاظ نے اس کا فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ جب سے بہزاد سے بات ہوئی تھی یہ 3 دن اس نے خود سے الجھتے ہوئے گزارے۔ ایک طرف اس بات کی شرمساری کہ وہ انگبین پر کیے گئے ان مظالم کا حساب لینے کی کوشش کرتی تھی جو سرے سے اس پر ہوئے ہی نہیں تھے۔ دوسری طرف یہ خیال بھی آتا ہے کہ عارف کون سا پارس ہے، وہ خود بھی ایک کبھی حرکت کا مرتکب ہو چکا ہے۔ لیکن آج جب بھابی نے اسے ایک ہلکے آسمانی لفافے میں ملفوف کارڈ اور سفید گلابوں کا بکے تھمایا تو یہ کہہ کر کہ تمہارے لیے کوریئر سے آیا تو فوراً بھابی کی پیش قدمی عارف کی جانب سے ہوئی ہے۔ اس نے بکے تتلی کے کارڈ کے پاس رکھا اور کارڈ کھولا۔ بے حد نفیس ہینڈ رائٹنگ میں وہ نظم سے کچھ یاد دلانے لگی۔ کیسے اتروں پار بادل بادل تیری آنکھیں دریا دریا خواب، کیسے اتروں پار چاروں جانب پھیل رہی ہے کاجل کی آواز، میرے دل کی ویرانی کو اس کی سندرتا سے بھر دے، مجھ پر اپنی پلکیں کر دے، اے سندر مت والی آنکھوں والی نار، اپنی آنکھیں موند کے مجھ سے سپنے میرے لے لے، بس اتنا بتلا دے کیسے اتروں پار بادل بادل تیری آنکھیں دریا دریا خواب۔ احمری نے کارڈ واپس لفافے میں رکھا اور تتلی کے کارڈ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نرم انگلیوں سے سفید گلاب سے ہلاتے ہوئے اس نے نظر بھر کے تتلی کو دیکھا۔ کیسے اتروں پار کیسے اتروں پار، اس کے اندر باہر ایک ہی تکرار ہونے لگی۔ یہ ضد کہیں مجھے بھی اس موڑ پر نہ لے جس پر رنگبین کو لے۔ اس کی ضد محبت تھی اور میری ضد نفرت، اور ضد کوئی بھی اور دیتی تو خسارہ ہی ہے۔ دنیا ویسی ہرگز نہیں جیسی کہ نظر آتی ہے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ بہن جسے میں اپنا آئیڈیلائز کرتی رہی، وہ کیا پتہ عارف مصطفیٰ اچھا شوہر یا اچھا بھائی نہ ہو مگر ایک اچھا باپ ہو۔ مجھے تتلی کے لیے دوگلی زندگی جینا ہی پڑے گی۔ وہ بالآخر ایک فیصلہ کو نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ چلو دیکھنے ہوں تہاڈی کی مکدی۔ گلی میں آج چاند نکلا، فلیٹ کا خوبصورتی سے راستہ کشادہ ڈرائنگ روم اس وقت نعمان آغا کی سریلی آواز سے گونج رہا تھا۔ لا دینے والوں میں ان کی خوشندام بیگم پیش پیش تھی جو کہیں سے 3 بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی 11 سالہ سدرا کی گود میں بیٹھی تتلی خوب کلکاریاں مار رہی تھی۔ سدرا چاکلیٹ کینڈی کے ذرا ذرا سے پیس کر کے اس کے منہ میں ڈالتی اور خوب زوردار چٹکارا لینے کے بعد اور کھانے کے لیے مچلنے لگتی۔ عارف ساری گہما گہمی سے بے نیاز تتلی کی معصومہ داؤں میں کھویا ہوا تھا اور احمری حیرت و دلچسپی سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک بغیر اطلاع کے آنے کے فیصلے پہ اسے خود جی بھر کے غصہ ہے جب فلیٹ لاک ملا۔ مسز آغا اتفاقاً اسی وقت سامنے کے فلیٹ سے نکلی، تعارف حاصل ہوا اور وہ پوری بلڈنگ میں ہاتھوں ہاتھ لے گئی۔ اسے جان کر چھمبا ہوا کہ وہاں سبھی انگبین کی وفات سے لاعلم تھے، نہ ہی کوئی یہ جانتا تھا کہ وہ عارف کی دوسری بیوی ہے۔ بھائی بہت دیر لگا دی تم نے بچی پالنا سیکھنے میں۔ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب عارف نے خوشخبری سنائی کہ وہ جلدی پاپا بننے والا ہے تبھی ہم تمہاری آمد کے منتظر تھے۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب وہ فیملی کے ساتھ سیٹ ہونا چاہتا ہے، لیکن بعد میں تمہارے نہ آنے کی وجہ اس نے ہمیشہ یہی بتایا کہ تم سے اکیلے بچی نہیں سنبھالی جاتی۔ جی بس وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ خاصی تقویت ملی سن کر کے عارف انگبین کو یہاں لانا چاہتا تھا تو اس کا مطلب ہے اس کی جانب سے پوری کوشش کی گئی تھی فاصلے مٹانے کی۔ فوراً عارف کو فون کر کے بلایا گیا۔ آنن فانن شام کو ویلکم پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ عارف نے سب کے لیے ڈنر کا انتظام کیا اور تقریباً سب نے ایمرجنسی کے باوجود اسے خوبصورت تحائف سے لاد دیا۔ رات 12 ساڑھے 12 کے بعد جب وہ سب چلے گئے تو اس نے گھر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واقعی عارف سچ کہہ رہا تھا، اس نے گھر کا چپا چپا سجا رکھا تھا۔ یہ گھر ہے احمری، جہاں تم اسے قدم رکھو گی تو یہ جنت بن جائے گا، ورنہ کھنڈر، اسے یاد آئے۔ اور شکر ہے میں نے اسے کھنڈر بننے سے بچا لیا، مگر کیا واقعی میں اسے جنت بنا پائی ہوں احمری؟ اس نے پلٹ کے دیکھا، بیڈ روم کے دروازے میں استاد وہ اسے پکارا تھا۔ جھجکتے ہوئے قدم بڑھانے لگی اور اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ اس کی قداور تصویر سامنے لگی تھی۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا احمری کہ تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کس کے کہنے پر کیا، مگر میں تمہارا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ تم نے میرے لیے اپنے دل میں کچھ تو گنجائش پیدا کی۔ یہ خوش فہمی کس لیے ہوئی آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں تو اب بھی خفا ہے مجھ سے، تیری آنکھوں نے تو کچھ اور کہا ہے مجھ سے۔ وہ اس کے نزدیک دو زانوں بیٹھتا وہ شعر گنگنانے لگا۔ شاعری سے خاصا شگف ہے آپ کو۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، شاید اپنی بے چینی پر قابو پانے کے لیے۔ پہلے تو نہیں، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد از خود پیدا ہو گیا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تبھی میں پلیز، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، پلیز یہ ذکر مت کیجیے۔ وہ گھبرا اٹھی، کہیں اس کا فیصلہ پھر سے نہ بدل جائے۔ نہیں احمری، تمہیں سننا ہوگا، آج تو سننا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری سنی، اپنی کہنی بھی چاہی تو تم نے سننے سے انکار کر دیا، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری نفرت کی وجہ یہ کہ میں ایک بد کردار انسان ہوں جو اپنی سالی پر بری نگاہ ڈالنے کا گناہ گار ہے۔ میں نے اپنی پہلی نظر کی محبت کا ذکر کیا تو تم بدظن ہوگی کہ شاید میں اتنا کمینہ فطرت ہوں کہ دلہا بن کے پہلو میں دلہن بٹھا کے کہیں اور نظر بازیاں کر رہا ہوں۔ یہی بات ہے نا؟ وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ اصل بات سے تم نا واقف ہو احمری، میں پہلی نظر میں تم سے محبت ضرور کرنے لگا تھا، مگر وہ پہلی نظر تب اٹھی تھی جب میں تمہیں جانتا تھا نہ تم مجھے۔ کیا؟ لیکن ہم تو پہلے کبھی نہیں ملے۔ وہ حیران ہوئی۔
شاید تمہیں یاد نہ ہو مگر وہ سفر میری زندگی بدل گیا۔ لاہور سے اسلام آباد جانے والی کوچ میں تم جہلم تک کے لیے سوار ہوئی تھی۔ سحری کا وقت تھا، تمہارے ساتھ ثنا نام کی ایک لڑکی تھی۔ تم نے راستے میں موبائل پر بات بھی کی تھی اپنے گھر، اور تب میں تمہارے نام میرو سے واقف ہوا تھا۔ وہ سفر ختم بھی ہو گیا، تم واپس چلی بھی گئی، اور میں پتہ نہیں کہ تمہاری ایک جھلک کی سوغات لیے بیٹھا رہا۔ یقین کرو ہے میری، میں تب سے تمہارے عشق میں گرفتار ہوں۔ وہ یقین کر رہی تھی، اسے یقین کرنا ہی تھا، لہجہ بھی سچا تھا اور لفظ بھی۔ میں نے تمہیں کھوجنے کی کوشش کی مگر ظاہر ہے کہ میں ناکام رہا۔ امی کے مجبور کرنے پر میں نے شادی کی حامی بھری تو ساتھ ہی اپنے دل کو پابند کر ڈالا کہ اب وہ تمہیں کھوجنے کی، راستے میں ملنے والے ہزاروں چہروں میں تلاشنے کی عادت ترک کر ڈالے۔ یہ پابندی لگاتے ہوئے میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسمت میرا کیسے امتحان لینے والی ہے۔ تم انگ بین کی بہن ہو، یہ حقیقت تلخ بھی تھی اور تکلیف دہ بھی، مگر بہرحال حقیقت تو تھی، اور حقیقت کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ احمدی ایک چیز ہوتی ہے دل، اور بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ ہزار بار سمجھاؤ، اونچ نیچ بتاؤ، مگر اپنے ڈگر سے نہیں ہٹتا۔ اس کی بے تابیوں سے ڈر کے میں تمہارا سامنا کرنے سے کتراتا تھا، اور تم بے وقوف لڑکی اس وقت تو بڑے گیلے کرتی تھی کہ آپ مجھے دیکھتی منظر سے غائب ہو جاتے۔ بعد میں مجھ پر نظر بازوں کا بے سر و پا الزام لگاتے ہوئے تمہیں وہ سب یاد نہیں رہا؟ اس کی استحقاق بھری ڈانٹ پر وہ کھچل ہو کے بے ساختہ وارد ہونے والی مسکراہٹ کو چھپانے لگی۔ میں نے تو اسی کوشش میں رہتا تھا کہ تم سے سامنا کم سے کم ہو۔ انگ بین کے ساتھ اس کے میکے نہ جانا بھی اس لیے تھا، میرا دامن بالکل صاف اور کردار بے داغ۔ میں نے رشتوں پر آنچ نہیں آنے دی، یہ میں خلفیہ کہتا ہوں۔ ہاں، ایک غلطی ہوئی کہ جذبوں کے بے ساختہ اظہار میں ذرا زیادہ ہی جلد بازی سے کام لیا۔ بہتر ہوتا کہ تمہیں یہ سب حقیقت پہلے ہی بتا دیتا، لیکن تب اتنا ہوش ہی کہاں تھا۔ اچانک ملنے والی خوشی نے بدحواس کر رکھا تھا، اور ویسے بھی میں نے اسی رات کہا تھا نا کہ تم سے کہ بہت قریب سے دیکھے تو منظر پھیل جاتے ہیں۔ ہوں، اس نے بات کاٹی۔ آپ نے کچھ اور کہا تھا؟ اس نے تصحیح کی۔ بہت نزدیک سے دیکھے تو چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ بہت اچھے احمری عارف مصطفیٰ، آپ تو بہت گہری نکلی۔ کہاں اتنی بیگانگی کے مظاہرے، اور کہاں یہ عالم کے ہمارے لفظ تک اپنے اندر اتار رکھے۔ اس کے چھیڑنے پر وہ دوری ہو گئی۔ عارف نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو بات ساری یہ ہے احمری بیگم کہ ہم سب اپنے نظریے سے بات کو دیکھتے ہیں۔ تمہارا تو پتہ نہیں، میرا عالم تو میں نے بتا دیا کہ میرے 400 دو جھیل سی آنکھوں کا پہرا۔ اور عارف مصطفیٰ، اس نے اپنا ہاتھ پر رکھے اس کے گندمی ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ ہولے سے رکھا۔ بے فکر رہیے، یہ پہرا مستقل رہے گا۔ کھاتا مشہود لے پہلے انہوں دیکھ نہیں سکھاندی سی تے ہن مستقل پیرے بٹھا دیتے۔ چلو کوئی نہ، ہوتا ہے چلتا ہے، دنیا کی کر سکتے ہیں، مسا مسا تے معاملات حل ہوئے نے۔ تو خیر گائز، یہاں پہ ہمارا آج کا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو غلط تے بے شک اگر انگبین کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن انگبین نے آگے بھی غلط کیا ہے۔ اونے اوندی والا تو ادنا لی اس طرح کا سلوک کیتا، کتنا کتے وہ بھی غلط سی عارف بھی، لیکن پھر بھی اس نے رشتہ نبھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا رشتہ نبھانے کی کوشش کی، اور پھر اپنے ایکس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، تو یہ چیز تو ٹوٹلی غلط تھی نا۔ تو پھر جان تو بھی اسی والا تو گزری۔ تو خیر پھر عدت یا نال پھر ادھا ہی ہوندا ہے۔ جب نکاح ہو گیا تو اگر پچھلا تمہارا کچھ تھا بھی تو نکاح کے رشتے میں سب ختم کر دو، بی بی پانچ جان چھڑ دے یا کراندی نا ایڈی تو سی تے۔ خیر کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ناول، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ عفیفہ ارشد اشنا کوثر سردار کا پرانا ناول جو آپ کے چینل پر ہے، پلیز پلے لسٹ میں دوبارہ ڈال دیں، اسی چینل پر یہ دوبارہ اپلوڈ کر دیں۔ ڈیئر دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، اشنا کوثر نے میرے سے چینل سے وہ ناول ڈیلیٹ کروا دیا ہے۔ خیر پہلے مجھے ان کی طرف سے کافی کچھ فیس کرنا پڑا تھا، لیکن شکر اللہ پاک کا وہ اچھی بندی تھی، کوآپریٹیو تھی، تو اس کی میرا بھی چینل بچ گیا۔ تو اب وہ ان کا نہ کوئی اور ناول آئے گا، نہ یہ والا آ سکتا ہے، معذرت۔ سیدہ علیزہ بلال، نائس ناول، اچھا ناول تھا، اچھی سٹوری تھی۔ گل مہر نہیں مجھے اچھی لگی یار، زیادہ مطلب زیادہ زیادتی جب ہوتی جب علیس اچھا انسان نہ ہوتا یا کچھ غلط کیا ہوتا، لیکن وہ تو اچھا انسان تھا، لیکن گل مہر خود بہت عجیب تھی۔ شکر ہے نگین بچ گئی اور گل کو اپنی حکماقت کا وقت پہ احساس ہو گیا اور بچ گئی۔ اچھا ہوتا افغان سے اس کی شادی ہوتی تو مزہ آتا، جب ذلیل بھی ہوتی اور خوش بھی نہ کہتی، لیکن مجھے اینڈ میں کمی لگی۔ مطلب تیمور کی شادی ہوتی، گل مہر کا سچ سامنے آتا، معافی تلافی ہوتی، اینڈ اور اچھا ہو جاتا، لیکن سٹوری اچھی تھی۔ صحیح بات ہے، یہ والی کمیاں تو مجھے بھی بڑی لگی تھی۔ تو گل مہر نو چھتر وجنے چاہیے سی، جڑے وجے نہیں، تو اس چیز دی نا کمی میں نے بھی بڑی لگی سی، مینوں گل مہر زہر لگی پچھوں۔ تھینک یو لیزا فار یور لولی کمنٹ۔ الشپا بٹ اچھا ہے، تھینک یو الشپا، عائشہ بٹ، سوری الشپا نہیں ہے، عائشہ بٹ، تھینک یو عائشہ۔ ارینڈو میوزر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ارینڈو میوزر۔ یہ مسز شہزاد آپ کو میں نے سینڈ کر دیا ہے لنک۔ جنونیت کی ریکویسٹ میں نے آپ کو کہا تھا، وہ 20-22 گھنٹے کا ناول ہے، وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ شروع کیا ہوا لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی ریکارڈنگ نہیں ہوئی اس کی۔ اب میں کدھر کدھر جاواں، ریگولر روٹین کا ناول بھی میں دے رہی ہوں، پھر اس کے بعد جو میں لانگ ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے ریڈ کرنا، میرا خیال 10-12 گھنٹے کا ہے وہ،
تو وہ بھی ساتھ-ساتھ دے رہی ہوں، ریکارڈ کر رہی ہوں ڈیلی کا، تو پھر ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਮਗਰ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਟੇਸਟੀ ਟਿਪਸ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਵਨਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ। माहम माहू ए वन नॉवल है, आपके पढ़ने का अंदाज बहुत प्यारा, थैंक यू वेरी मच माहम माहू। जेनिफर नावल नेम डिस्क्रिप्शन में देखे, तनु आर्या अच्छा नावल है, थैंक यू तनु आर्या। सिद्रा शाहिद, शहजाद अनवर भट्टी हेलो। नोरीन नोरीन माइंड ब्लोइंग, थैंक यू नोरीन नोरीन। तनु आर्या अच्छा नावल था, मजा आया, फाइनली लास्ट में ताज की नैया भी पार लग गई, आहो ऐसे ही है, थैंक यू तनु। साहिबा मलिक वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल अच्छा था लेकिन राइटर को थोड़े से सीन और लिखने चाहिए थे, वहाज की थोड़ी एफर्ट्स करनी चाहिए थी। सही बात है, बनता था। थैंक यू साहिबा मलिक। साहिबा मलिक वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सो सॉरी काफ़ी दिन बाद आज मैं कमेंट कर रही हूँ, लेकिन मसरूफियत इतनी थी कि काफ़ी दिनों बाद नावल सुन रही हूँ। आज भी बहुत मुश्किल से आज वक्त निकाला है। वैसे नावल बहुत अमेजिंग है, पर फिरदौन तो बहुत ही कमीना प्लस लानती है। दे रहा है दुरुस्त है, और मैं उसको अक्ल आ ही गई है, पर जो भी था अच्छा था। ऐनुल हक के करेक्टर बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच साहिबा मलिक। मसरूफियत बस आजकल मसरूफियत हो ही बहुत गई है छुट्टियों की वजह से ना। खैर आप आए, उम्मीद करती हूँ दोबारा वक्त निकाल लेंगी। नवीद गागरा, ये अच्छा नाम है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कब से, थैंक यू नवीद गागरा। सईदा अलीज़ा बिल्लाल, आउटस्टैंडिंग नावल, बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा था। मैंने दोबारा सुना, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी स्टोरी थी, आर्मी बेस्ड सीक्रेट एजेंट बेस्ड स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। केड़ा गाजी वाला किधर गया? साहिरा बड़ी ही कोई लानती औरत थी यार। ये कैसी औरतें होती हैं जिनको अपनी औलाद की भी परवाह नहीं होती, लेकिन बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। और बहुत अच्छा अंजाम हुआ इसका, अपने ही बेटे के हाथों मौत। मुझे लगा ही था कि गाज़ान ही कालिया है, लेकिन जो राइटर ने स्टार्ट में कालिया का नक्शा खींचा था ना, वो बहुत फनी था। शुक्र है यार वो असल में नहीं था, हमारा क्या होता कालिया। सही बात है। ओए होए बहुत इमोशनल सीन्स थे यार, जब गाज़ान के बाप, चाचू और नाना मरे थे, मुझे बहुत रोना आ रहा था। लेकिन एंड अच्छा हो गया, सही कहा आपने। गाज़ान बेशक अच्छा बंदा था, लेकिन अपनी बेगम के लिए इम्तिहान ही बना रहा। लेकिन ज़ैनब का करैक्टर कमाल, खास तौर पर माल्टे, वो भी चोरी के। लेकिन फाइनली एंडिंग अच्छी थी, मज़ा आया बहुत। मुझे तो ये नावल ओवरऑल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा फॉर योर लवली कमेंट। आज आपकी वजह से मुझे भी एक चीज़ का पता चल गया, लेकिन मैं आपको बताऊँगी नहीं। सहर इशफाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त वॉइस, थैंक यू साइम वहीद। थैंक यू सहर। सहर इशफाक, बहुत ज़बरदस्त नावल था, फ़नी भी था, डिफरेंट स्टोरी थी, नाइस नावल, आपकी वॉइस माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सहर। नूर फातिमा, व्हाटएवर द स्टोरी इज़, यू आर एन अमेजिंग स्टोरी टेलर। थैंक यू वेरी मच नूर फातिमा। आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया। और कोई कमेंट है कि नहीं है? छेती घूम जा फिर की। नहीं जी। कमेंट सेशन यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आप सबको आज का नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और मैं एक दफ़ा फिर बोल रही हूँ, घंटा डेढ़ घंटे का नावल छोटा नहीं होता, ते आराम नाल शराफत नाल ओहदे ते भी रिस्पॉन्स दिया करो, अच्छा? तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा? आज का नावल तो अच्छा था। अब आपको कैसा लगता है ये आप अपने रिस्पॉन्स से बताइएगा, ठीक है? मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।